शिट हियर वी गो अगेन। बहराम काजी बैठा हुआ है मेरे साथ और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए टू डिस्कस द एशिया कप फाइनल जहां पे इंडिया बीट पाकिस्तान इन थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट। Yeah, व्हाट अ मैच। absolute nail biter, and there's a lot to unpack today. थोड़ी स्पाइरल कर रही हैं थॉट्स, मगर कोशिश करेंगे कोई भी स्टोन को अनटर्न ना छोड़ें. थोड़ा स्कैटर्ड थॉट्स हैं यहाँ पे, बट होंगी सारी बातें, डिटेल में रिव्यू होगा, फाइनल ऑन फील्ड स्टफ, ऑफ फील्ड स्टफ, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड. बट बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग, congratulations to all Yes. Indian viewers, mutuals and friends. and friends, that's the key. For a spectacular Asia Cup victory. They were unbeaten, 7 games out of 7. मैंने पहले भी प्रीव्यू में बात की थी कि what are the odds that they do that, and they managed that. यार, it was one hell of a final, a game worthy of a final. Game worthy of a final on the field. Yeah, Yes, absolutely. On the field, importantly, but a game worthy of the final, in which India managed to defeat Pakistan by 5 wickets and only 2 balls to spare. They have now secured their 9th Asia Cup title. And yaar, I mean, we should be happy कि competitive था बड़ा final. Yeah. Give props to India. I mean, they were scrappy throughout the Super Fours. They were scrappy in the final as Yes. well. But his team की class ही यही है. The might of India's white ball juggernaut is such that they can be poor in 1 or even 2 departments and they can still scrape away with W after W after W. And the most important part is जो कि हमने पहले भी बोला था कि even if they come under pressure, they've got the quality Yes. and they've been trained to deal with such quality. बिल्कुल. कि pressure में भी हो आपकी quality आपको over the line ले जाएगी and that's what happened. Apparent पाकिस्तान की mistakes थी Yes. और इंडिया की भी mistakes थी, ऐसी बात बिल्कुल. नहीं है. But then again, quality at the end of the day जिस side के पास ज़्यादा थी that won the tournament. बिल्कुल. I mean, look, even if India had lost the final, they were the better T20I team क्योंकि T20 format ही volatile है. But then again, Yeah. you know, मैं तो हमेशा इसको मानता हूँ कि जो टीम ट्रॉफी उठा के लेके जाती है ना, that's more important. आप Sure. बोलते रहो. जैसा 2023 ODI वर्ल्ड कप था, हाँ. इंडिया were the best side on display, Yes. but Australia won the trophy at the बिल्कुल. end of the day. What I was trying to say is that even had India lost the final, it wouldn't have been an apt reflection on their side because they're still a top team. मेरे ख्याल से दुनिया में अभी भी number 1 है. लेकिन Their scrappy performances and them despite the scrappy performances, winning all games proves that. But they're not entirely invincible, are they? हाँ. Invincible ही हैं. Invincible हैं और देखो अगर आप फाइनल या कुछ हारता ना इंडिया, तो उनके जो क्रैक्स हैं जो अपेरेंट हैं हमें, Yeah. लेकिन उनके फैंस को भी अपेरेंट हो जाते हैं बिल्कुल. कि ओ माय गॉड नई क्रैक्स हैं इस टीम के अंदर. और जितनी भी अच्छी क्वालिटी है इंडिया की, आई स्टिल फील, ये मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा हूँ, बिफोर द एशिया कप बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट टीम उनकी नहीं खेल रही. या उनकी बेस्ट टीम ये नहीं है. They could be better. They could be much better than this. जितेश को पूरे टूर्नामेंट ट्राई नहीं किया. वो अलग बात है कि संजू एंड में कुछ थोड़े बहुत क्रूशियल नॉक्स दे गया, बट आई फेल्ट लाइक दैट वाज अ होल. एंड देयर आर अदर होल्स यार. बुमराह अगर ना हो तो सीम बॉलिंग में होल्स नजर आते हैं. स्पिनर्स आर सॉर्टेड. Even हार्दिक पांड्या जो है, Yes. that's massive player for them. इररिप्लेसेबल. Irreplaceable है. कल शो हो जाना चाहिए था, वो तो पाकिस्तान ने कैपिटलाइज नहीं किया. Exactly. Pakistan did not make use of that. A few things went their way, of course. Point is कि India does also have holes, not as grave holes as Pakistan. I still think they're the best T20 side in the Yes. world. क्योंकि India can do what they do across conditions. The rest of the teams like Australia, South Africa, England or New Zealand perhaps, ये conditions dependent team है. Despite the issues that we're talking about कि यार यहाँ पे gaps हैं उनके, they're still the best. तो सोचो और कितना बेहतर हो सकते हैं. Exactly. India could be much better than this, but ultimately they were deserving champions, unbeaten. मुश्किल situation से, pressure situation से निकाल कर अपने आप को मैचेस जीते हैं. कल वाला हार भी सकते थे. सादी, you know very well how I felt about this final कि if Pakistan bats first, they have no chance at all. I felt कि Pakistan's best chance was to bowl first and have or take quick power play wickets, get Abhishek early and put India under pressure. They were about to prove me wrong. About to prove you wrong. अगर थोड़ी सी वो थोड़ा सा ऑन फील्ड अपनी गेम अवेयरनेस दिखा देते हैं ना, आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव वॉन दिस मैच. बात वही है कि early inroads in the power play, especially Abhishek's wicket, was going to be important in either innings. मेरे ख्याल से पाकिस्तान probably had a better chance if they bowled first, but then again, I don't think this is a talking point anymore because they proved us otherwise. हाँ, क्योंकि आपने पहली बैटिंग में ही इतना हक दिया था ना वाकई कि भाई फिर वहां से कैसे रिकवर करोगे. डिस्पाइट बॉलिंग ग्रेट, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है. 1-2 प्लेयर्स ने नहीं करवाई, एक स्पेसिफिकली एक प्लेयर ने नहीं करवाई. बट देन अगेन आपने लिटरली उनको चोक किया हुआ था. और वहीं से फिर बैटिंग में भी मिस्टेक्स की, बॉलिंग में भी मिस्टेक्स की, और फिर
ऑपोजिशन के लिए तो इजी हो जाता है ना फिर, और इस तरह की क्वालिटी की ऑपोजिशन हो तो उनके लिए तो फिर हलवा है यार मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि यू कैन नॉट एज मच एज ब्लिंक वर्सेस दिस इंडियन साइड इन पाकिस्तान ब्लिंक plenty of times yesterday. नहीं, बैटिंग में तो नैप ही था, नैप नहीं पूरे सो गए। हाँ, सो पहले हाफ में तो नहीं सोए हुए थे, सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में तो वो सो गए, वो कोमा था। हाँ। forget blinks, right? ये नैप से कोमा पे हम ग्रेजुएट कर गए हैं। Look, a few things went Pakistan's way, right? This was a good toss to lose. ठीक है, टॉस जीतकर Sky was adamant कि we want to chase. सलमान अली आगा said we'll bat first anyway. That was interesting. वो अगर वो उसने कर लिया होता टॉस जीतकर बैट फर्स्ट, तो शायद मुझे ज्यादा तब चढ़ रही होती इस वक्त। और फिर जो पागल हुए होते लोग, उन्होंने तो नहीं छोड़ना था। Yeah, but the toss went Pakistan's way. Hardik Pandya not being there went Pakistan's way. He is literally irreplaceable. He's the best seam bowling all-rounder in white ball cricket, जो वैसी रेयर कमोडिटी है। What's the next best? अज़मतुल्लाह। डे लाइट है ना, मतलब वो स्किल सेट वही है, मगर हार्दिक की क्वालिटी और अज़मतुल्लाह की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है अभी। मे बी दैट गैप इज ब्रिज्ड ओवर द इयर्स, बिकॉज़ अज़मतुल्लाह ओवर द इयर्स, अभी तो नहीं, करंटली तो बहुत बड़ा गैप है, काफी गैप है। बट पाकिस्तानी गलतियां गिनना शुरू करें। सबसे पहले तो दे वेंट अनचेंज्ड, दे डिड नॉट प्ले हसन नवाज। सलमान अली आगा, आपने कहा था कि अगर मैं इफ आई कैन नॉट मेक मैच विनर्स आउट ऑफ मोहम्मद हारिस, साइम अयूब एंड हसन नवाज, देन माय कैप्टेंसी विल बी considered a failure. You dropped the guy. Saim or Haris didn't perform. Yeah, but you dropped the guy. तो Hassan Nawaz was the sort of cricketer जो spin basher था आपका middle overs में, and he could also whack pace when the ball is not new. You were supposed to build the team around him and give him confidence despite him failing. You should have gone all Imran Khan Inzi on him कि तू खेल, तूने टेंशन नहीं लेनी, तेरी जगह नहीं जाएगी। चली गई जगह। After a few bad innings, उससे पहले तो ठीक था यार। गलत किया आपने, सबसे बड़ी गलती आपने वही कर दी। फिर हुसैन तलत drops that catch, he shouldn't even have been playing. He shouldn't have been in the squad initially, लेकिन चलो ठीक है, एक श्रीलंका वाला उसने मैच निकाल दिया आपको। उसके अलावा तो नहीं बन रही थी ना, फाइनल में तो नहीं बन रही थी, और फिर जब आपने उसकी बॉलिंग यूज ही नहीं करनी तो फिर फायदा क्या है? You cannot afford to have both of Salman Ali Agha and Hussain Talat in the same T20 team, और and those guys were on the crease together in the 15th and the 16th over. Yes, which made no sense. मगर अभी गलतियां गिनना स्टार्ट करो, तुम काउंटर ऑन करो अपना उंगलियों के साथ, ठीक है? हसन नवाज not playing, mistake. One. All right. Then after that, you could not maximize India's fifth bowler. Two. शिवम दुबे none for 23 in 3 overs. पावर प्ले में 2 ओवर थे, 12 रन दिए उसने सिर्फ। He opened the bowling in the final, जहां पे हार्दिक पांड्या को वो रिप्लेस कर रहा था। Yup. और आपने कैपिटलाइज ही नहीं किया। India, ultimately that worked out for them, that they replaced Hardik with a batter or batting लंबी की, but they had compromised big time on their fifth bowler. They opened the bowling with Shivam Dube, who was their second seamer. It was madness, and that didn't hurt them क्योंकि आपने 12 रन मारे उसको 2 ओवर में पावर प्ले के। He ends up with none for 23, and the 12th over of the innings was bowled by Tilak Verma, not Abhishek Sharma. Tilak Verma, and you only managed 9 runs off that over. None for 32 for India's fifth bowler. Massive advantage given away. इसको तो मैं 2 भी नहीं कह रहा, मैं 2.5 कह रहा हूँ, इतना बड़ा एडवांटेज। हाँ, सो 2 हो गई, 2.5 कर दिया तो ठीक है। You've got Hassan Nawaz and the fifth bowler. Yes. Then once you've gotten a start, you are 113 for 1 and 12.4 overs. अब एंड में डेथ ओवर्स रह गए हैं। सलमान अली आगा and Hussain Talat have no business batting out there, let alone being a pair. मतलब आप यार अपने सारे लोअर ऑर्डर बैटर्स को प्रमोट करो, हिटर्स को प्रमोट करो। यू कीप योरसेल्फ, सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत, एज इंश्योरेंस बैटर्स कि ये गाइस, यू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्व्स, and if you're not able to express yourself, try to maximize the death overs. आप अगर कर लेते हो स्कोर तो फिट है, नहीं करते तो मैं और हुसैन तलत हैं, हम कुछ ना कुछ करके सिंगल सुंगल करके 160 तक पहुंचा देंगे। Exactly. वहां से तो 160 was the minimum. Throughout this Asia Cup, Pakistan's lower middle order and Shaheen Shah Afridi have been bailing them out with the bat. Lower middle order. Lower middle order and lower order. ठीक है, have been bailing Pakistan out with the bat. You tell them कि यार all of you guys are getting promotions today. आप हम tactically flexible होंगे, T20 dynamic format होता है, go out there and express yourselves, टेंशन नहीं लेनी, आउट हो गए, मैं और तलत बचे हुए पीछे, we're in the kitty, we're your insurance batters for tonight. 3 गलतियां होंगी, सही है। उसके बाद सादी 113 for 1 and 12.4 overs. In the next 39 balls, Pakistan managed 33 runs and lost 9 wickets. They were all out for 146 and 19.1 overs. You cannot recover after that versus a team like India. 4. ये 4.5 है. That is a Colathpus Maximus Gargantuanus. यहाँ पे बात आती है ना गेम सिचुएशन और अवेयरनेस की यार, मतलब
अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राणा जी बैटिंग करने आए थे, कुलदीप की लास्ट बॉल ऑफ स्पेल थी, बिल्कुल। राणा जी ने सीधा कैच दे दिया, यू डेड बैट दैट यार, आई डोंट केयर, डॉट Single निकालो ले लो। किसी तरह, Single ले लो। डॉट ले लो, कोई नहीं, आगे आ रहे हैं पेसर, यूल टारगेट देम, क्योंकि आप मारते पेसर्स को ही हो। बिल्कुल। जीरो अवेयरनेस, वहां पे विकेट गई, और तो फिर ऑब्वियसली लाइन लगी हुई थी तो गिरते ही गए। उसने जितना बताया 39 balls 33 runs 9 wickets. The biggest mistake was losing 9 wickets for 33 runs and 39 balls. You didn't even play out your overs. Yeah. You messed up your batting order. कितने पे आ गए हम? 4.5? 4.5. उसके बाद अगर तुम आओ तो संजू सैमसन, माना कि वो 24 पे आउट भी हो गया, बट व्हेन ही वाज ऑन 12 हुसैन तल्लत ड्रॉप्स डॉली, ही शुडंट even been playing, तो पार्ट ऑफ द ब्लेम गोज टू द मैनेजमेंट एज वेल। तल्लत बेचारे को कितना रगड़े, कोई जान के कैच तो छोड़ता नहीं है, 5.5. बट दैट्स स्टिल अ रिप्रीव, क्योंकि वहां पे आप एक और विकेट लेते, इंडिया को और प्रेशर, you would have been able to exert even more pressure on India, and wickets is what was going to win you this game. 5.5. 5.5, ठीक है। 2 रन आउट चांसेस मिस्ड। एक तो चलो गिल की डायरेक्ट हिट थी, उसको कितना ही बोले फखर को, बट और डायरेक्ट हिट होती, गिर भी गया उसके फौरन बाद, एक चौका ही मारा उसने उसके बाद, ठीक है। यू मिस्ड गिल्स रन आउट, ओके। जो तिलक वर्मा का रन आउट था when he was on 36, my God. मोहम्मद हारिस was the keeper, he should have executed it. took eons, Yes. eons to rip up the stumps. Rip out भी क्या किया, हल्का सा टच ही किया यार। I swear to God, I think वहां पे तो आधा मैच हार गए थे, क्योंकि तिलक was the key. Yep. Behram कल कह रहा था कि Dube has been their MVP. I still feel Dube wouldn't have been able to play that innings if Tilak didn't play that innings. Tilak was the glue that was holding that batting lineup together. आते हैं उन दोनों के ऊपर, क्योंकि बात तो काफी उन लोगों की करनी है, सारे प्लेयर्स डिस्कस करने, बट माय प्लेयर ऑफ द मैच वुड हैव बीन कुलदीप यादव. None for 23 in his first 2 overs. He went for plenty, came back and took 4 wickets for 7 runs in his last 2 overs, Yes. ending with figures of 4 for 30. He took 17 wickets in the Asia Cup, was the leading wicket taker. Guess who predicted that? But then again, he predicted it. Yeah. लेकिन then again, Behram वहां से रन चेज जिस तरह फंसा हुआ था ना, जिस तरह की इनिंग्स तिलक ने खेली है, ऑल्दो आप कहोगे यार बड़ी स्लो इनिंग्स है, लेकिन द पिच वाज ट्रिकी, यू लॉस्ट 3 विकेट्स अर्ली, जो आपने अभी तक टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। यू बैटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान इन अ फाइनल, वहां से आपने रन चेज पूरी बैटिंग ऑर्डर को संभाला है लिटरली, वो मेरे लिहाज से वही था। I get your rationale. Tilak scored his 50 of 41 deliveries, was unbeaten on 69 of 53. It's a great knock. When you're chasing 147, तो यही चाहिए आपको। यही चाहिए आपको. He understood the assignment. ये अगर बैटिंग फर्स्ट होता तो this would have been a poor knock. Yes. He understood the task at hand and he nailed it. ठीक है. डिफरेंस देख लो अवेयरनेस का, गेम अवेयरनेस का. इसमें पॉजिटिव साइन ये जरूर है दैट इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैटर्स इज स्टेपिंग अप. तिलक इज 23. आई डिड नॉट नो ही इज 23. मुझे लग रहा था 26-27 साल का तो होगा एटलीस्ट. गौरव नंदन त्रिपाठी बता गया हमें, जो कि बाय द वे थ्रू आउट ऑल लाइव्स ग्रेट नगेट्स ब्रो. लव यू GNT. वो ये देख नहीं पाएगा क्योंकि ये वाला चैनल बैन हुआ है, बट लव यू GNT. सही है. सो I would want to give him a lot of credit because he played the situation perfectly. 41 ball 50 is what was needed, or being unbeaten at the end finished the game. 69 of 53 unbeaten, fantastic. I would still give the player of the match award to Kuldeep though. चलो मिस्टेक्स पे आ गए थे हम. 5.5 आगे यार. I don't think सलमान अली आगा का कैप्टनसी ब्लंडर था to give हारिस राउफ overs at the death, but उसने 15th ओवर हारिस को दिया, एंड चेंज हुआ अबरार का, and he didn't bowl Saim Ayub out. So Abrar ends up with decent figures, 1 for 29. बट सादा बच्चे तुझे थोड़ा तंग करने वाला हूँ क्योंकि हम भूल गए काम करना. भूल गए वो. हाँ. क्रिक मैट्रिक पे गो टू अबरार अहमद. और स्टैट्स देखो, राइट वर्सेस लेफ्ट. यस. T20 आईज में एडवांस फिल्टर पे जाकर ओए मुझे पता है कैसे करना. टाइप ऑफ बैटर करते. तुम समझा किसको रहे हो? ये हमारा यार जानी है नजम. Yes, he was very sir. disappointed that we didn't cover this in the preview Previous of the one, final. या previous जो podcast था. Our apologies, मेरे notes में था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया. But now this is valid because 2 lefty लगे हुए थे. Saim Ayub can bowl the carom ball to right-handers and the conventional off break to left-handers. He was having a better day than Abrar, and Abrar struggles big time versus left-handed batters in T20 Is. उसको 16वां ओवर देना गलत था. He should have either bowled himself. सलमान अली आगा, आप खुद ऑफ स्पिनर हो. I don't know कि क्यों नहीं. हाँ. क्यों नहीं. If not Saim, अपने आप को ट्राई कर लो. You can bowl to left-handed batters. आप चांस ले सकते हो. वरना Saim has delivered with none for 16 in 3 overs. He's had a good bowling game. नहीं मारा जा रहा है इंडिया से. Then you take a chance with Saim. I know Abrar frontline bowler है, but ये जो अभी numbers बताने वाले हैं हम आपको, Abrar struggles versus left-handed batters. The disparity between his performances versus righties and lefties, right-handed batters and left-handed batters in T20Is is immense. ठीक है. पहुंच रहे हैं वो वहां पे.
करता है वो ये काम, तो ये भी गलती थी। तो अब हम कितने पे हैं, 6.5 या 7.5? 6.5 6.5, दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स मैन। मतलब देखो ना कि आपने तो एक भी गलती नहीं कर सकते थे आप, और आपने 6.5 कर दी हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ अगेंस्ट राइट हैंडेड बैटर्स। अबरार T20 आइज में उसने 22 इनिंग्स में 292 रन्स कंसीड किए हैं, 21 विकेट्स लिए हैं, 5.65 की इकोनॉमी, 13.9 की एवरेज। Ridiculous, otherworldly numbers. That's how good he is versus right-handed batters. And against lefties, Southpaws. 19 innings, 8 wickets, 8.67 economy, 29.6 average. Yeah, so the average is touching 30. देख लो, इतना बड़ा गल्फ है, आपने दो लेफ्टियों पे एंड में अब्रार को एक और ओवर दे दिया, या साइम को देते या खुद कराते। खुद क्यों नहीं ट्राई कर लेते अपने आप। काफी देर थे दुबे और तिलक क्रीज पे, मगर साइम का बनता था। ही डन वेल। आपने तो चलो बॉलिंग ही नहीं कराई, आप हो भी पार्ट टाइमर, यू कैन नॉट टर्न द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस। बट बिफोर साइम्स इमर्जेंस आप किस पे रिलाई कर रहे होते थे? Exactly. सलमान अली आगा पे एज अ पार्ट टाइमर, राइट? तो आई डोंट थिंक, आई डोंट नो, तो वो इट वाज साइम और सलमान अली आगा टू बोल एन ओवर एटलीस्ट। मैं नहीं कहता कि आपने गलती की ज्यादा हारिस को 15th ओवर देके, लोगों ने कहा एंड चेंज हो गया अब्रार का, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट हारिस से आप एक्सपेक्ट ही करते हो। हारिस रऊफ की नौकरी है एग्जैक्टली वो टीम में इसलिए क्योंकि वो डेथ बॉलिंग करवा सकता है। He is supposed to be a death over specialist. Salman giving Haris Rauf overs at the death is not his blunder. वो आ गई 7.5वीं गलती। हारिस रऊफ none for 15, 3.4 overs. सादी कल हम बात कर रहे थे, yes he's done well as a death overs bowler in his career, but now big games में he has had a weird legacy. Melbourne, Dallas, Dubai, India, USA, India. ये 3 बड़े मैच हो गए यार। That's not a fun legacy to have. When the stakes are high, you watch it hard. You can win as many bilateral series as you want. I don't care. जब टफ सिचुएशन आती है ना, तो फिर आपका रिकॉर्ड सामने है। बिल्कुल। और हारिस रऊफ शैट द बेड बिग टाइम यस्टरडे मैन। यस सर। और उसने, इट्स नॉट ऑन सलमान कि उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, ही वाज बॉलिंग फुल टॉसेस, चेंज ऑफ पेस ज्यादा नहीं थी। आई एग्री विद बहराम 100%। अगर आपने कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कह के किसी को रखा हुआ है ना, तो फिर आप उसी से उस टाइम पे बॉलिंग करवाओगे। मसला ये है कि उस प्लेयर की क्वालिटी और वो अगर प्लेयर का जो हेड लॉस हो जाता है इन क्रंच सिचुएशंस, तो फिर वो प्लेयर का मसला है, कैप्टनसी का मसला। उसका दिमाग कहीं और था ना एशिया कप में, उसको सेलिब्रेशनों की पड़ी हुई थी। मैच जितवा के सेलिब्रेशन करनी थी, कर लेते ना, फाइन भी कॉप कर लेते, मगर बहुत फूंक चढ़ गई थी। अब मजे करो, मरवा दिया एंड में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सबसे बुरी परफॉर्मेंस। आई थिंक पाकिस्तान लॉस्ट द मैच जब वो बैटिंग कोलैप्स मैक्सिमस हो गया था, लेकिन उसके बाद यू गॉट बैक इनटू द गेम। और सेकंड हाफ ऑफ द मैच, सेकंड इनिंग्स में हारिस रऊफ और ये जो फील्डिंग मिस्टेक्स हमने बताई हैं, उसकी वजह से आपके हाथ में जो मैच था वो आपने छोड़ दिया। मेरी तरफ से 40 से ज्यादा रन खाओ, 3-4 विकेटें निकाल कर दो। विकेटें भी नहीं निकाली, 50 रन भी खा गए। None for 15, 3.4 overs, 22 बॉल में आपने वहां 50 खा लिए, जहाँ पे किसी से रन ही नहीं हो रहे थे। इसको कौन से ओवर में लेके आए थे? 15th ओवर में 17 रन कंसीड किए इसने। और तुम्हें चौका और डबल ट्रिपल जो भी। तुम्हें याद है आफ्टर 14 ओवर्स इंडिया रिक्वायर्ड 64 रन्स इन 6 ओवर्स। दैट वाज द फर्स्ट टाइम 10 से ऊपर गई थी रिक्वायर्ड रन रेट, और उसी ओवर में खत्म। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आपके सामने राणा फहूम ने कितनी अच्छी बॉलिंग कराई, शाहीन ने कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई है, और वो क्या यूज कर रहे थे? हार्ड लेंथ और पेस ऑफ। यस, फुल टॉसेस, फुल 145 पे मारी जा रहे हो यार। नो पेस वेरिएशन, नो लेंथ वेरिएशन। जब पेस वेरी किया तो टांगों में दे दी, ठीक है, आर्क में दे दी तिलक के, और दुबे से भी कुट खा ली। लाइक इट वाज पुअर एग्जीक्यूशन बाय हारिस रऊफ, एंड दैट्स हारिस फेलियर, नॉट सलमान्स फेलियर। मगर गलतियों में तो आता है ये भी। बिल्कुल। नॉन फॉर 15, 3.4 ओवर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसकी लेगेसी जो बन गई है इन बिग गेम्स, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ऑनेस्टली नहीं कर सकते। या तो वन ऑफ होता ना, मैं जाने देता, हर दफा नहीं। आई मीन चलो, पहले कह रहा था यार कोहली मार सकता है, तो ठीक है। उसके बाद फिर एरन जोन्स था, ठीक है, शाहीन ने वहां पे कैच ड्रॉप किया, आई नो, लेकिन आप पाकिस्तान वर्सेस यूएसए वो नहीं कर सके। 15 रन थे ना आखिरी ओवर में। यस, 12 ऑफ 3 थे। हाँ, यस, 12 रन्स ऑफ 3 बॉल्स, वो नहीं डिफेंड हुए। और फिर अब ये सो चलो, कोहली वाला मैंने जाने दिया, आपने कह दिया कि यार कोहली है। उसके बाद क्या है यार? उसके बाद तो एरन जोन्स और तिलक वर्मा। एग्जैक्टली। और आपको वो डोमिनेट करना चाहिए था वहां पे। इवन इन द लास्ट ओवर यू हैड 10 रन्स टू प्ले विद, इतने कम भी नहीं थे।
आपने छक्का खा लिया और फुल टॉस है इतनी, where was your head at? कोई एग्जामिन करे हारिस रऊफ को यार कि what sort of I like think he was already consumed by the hate? I think उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था मैं जीत के क्या सेलिब्रेशंस करूंगा। वाकई वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसका दिमाग कहीं और था, बट चलो सारी गलतियां हो गई। इज दैट 7.5 then? Pakistan's mistakes in the Asia Cup final speed round, Hassan Nawaz not playing, then Salman Ali Agha and Hussain Talat being out of the crease where they should have been insurance batters, hitters को promote करते, ठीक है। उसके बाद then you did not capitalize on India's fifth bowler, that's 32 runs in 4 overs. After that, ठीक है, माना आपने स्टार्ट अच्छा लिया बैट के साथ, but you kept capitulated. 9 wickets fell for 33 runs and 39 deliveries, fourth mistake. उसके बाद आप आओ, सलमान अली आगा ने गलती की, 16th ओवर अबरार को दिया, साइम को देना चाहिए था, खुद आता। हारिस रऊफ ने 50 रन खाए 3.4 ओवर्स में 22 बॉलों में, ये छठी गलती हुई है, और एक गलती मैं भूल गया हूँ। उसके बाद हारिस रऊफ ने तो ये कर दिया। आई फील पाकिस्तान के 2-3 बड़े अच्छे परफॉर्मर्स थे। अब साहिबजादा फरहान विद द बैट, आई वाज सरप्राइज्ड विद दैट। उसके अलावा आई वाज मोर सरप्राइज्ड विद राना फहूम, द वे ही बोल्ड, और शाहीन अफरीदी वाज रियली रियली गुड। साहिबजादा फरहान पे आते हैं ब्रो। आई मीन द स्टार्ट ही प्रोवाइडेड, उसके बाद तो फिर ही वाज द ओनली गुड बैटर इन द साइड। He was the only Pakistan batter who had a net positive knock in the final. He was the best batter in the final. ये कह सकते हैं हम। 35 ball 50 for Saibzada Farhan, and then he didn't decelerate. He ended up scoring 57 of 38 balls. Good knock. Pressure में यार final के आपने deliver किया. His record versus Bumrah in this Asia Cup is unreal. मैं वहां पे ना malfunction कर गया था बेराम भी, ये हो क्या रहा है 3 मैचों में यार। I thought ultimately Bumrah will get the better of him, but नहीं। weird. Sahibzada Farhan has turned out to be Jasprit Bumrah's kryptonite. It's weird. क्या उसका रिकॉर्ड तुम्हें याद है? 51 of 34 balls. Yes, Varun told us Yeah. in the comments that in this entire Asia Cup, Sahibzada Farhan has scored 51 runs versus Jasprit Bumrah in 34 deliveries, and he hasn't been dismissed. So how is Sahibzada Farhan Jasprit Bumrah's kryptonite? I still can't make sense of it. Maybe, I don't know. maybe the way he sets himself up. I don't know. बुमराह bro. उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप कराई जा रहा था, बॉडी में नहीं दे रहा था। बॉडी में जब दिए तब भी मार दिया। मारा है। मैं तो कह रहा था ना कि हमने जो आइडेंटिफाई की थी साहिबजादा फरहान की वीकनेस, 2 दफा आउट हुआ था निब बैकर से। Yes. कोई फर्क नहीं पड़ा। चक्कर ये कि इफ यू गेट द निप बैकर रॉन्ग, हल्की सी फुल हो तो वो गोल्फ स्विंग सी मार देता है, वो मिस टाइम छक्के मारता है, बड़ी अच्छी मार। या टू एंड्स और मसल्स द बॉल फॉर 6, और अगर हल्की सी शॉट हो तो उसकी पुल पक्की है। Yeah. ठीक है। उसके अलावा यू गाइज मस्ट हैव नोटिस व्हेन बुमराह वाज bowling outside off stump to Farhan, he also took him on over the infield on the offside few times. That was really clever. It was a very very good knock. Unfortunately the only net positive knock of the night. यार उसका मैंने कोई रिकॉर्ड पढ़ा था, मैं भूल गया हूँ कि किसने ट्वीट की हुई थी वो, अगेंस्ट बुमराह और फिर अगेंस्ट एवरी अदर पेसर। Yeah. ह्यूज गल्फ। Yeah. आई मीन वो बाकी पेसर्स के अगेंस्ट 108 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। True. ये मैंने भी पढ़ा है कहीं पे। Yeah. So that was odd. Cannot explain it. It's an anomaly. But good on you, Saibzada Farhan. He did not end up deserving to be on the losing side. And then तुमने सही बोला शीनो और राणा फहूम। राणा जी तो यार एक और बात साहिबजादा फरहान पे, करंटली द ओनली बैटर टू हैव 50 runs against Bumrah without being dismissed. There you go. 1 of 1. End of list. Saibzada Farhan and that's it. End of list. It's weird. क्या है ये? Yeah. ये कौन सी किरकुट है मेरा? पता नहीं कौन सी क्रिकेट है, मगर वहीं पे जहाँ पे साहिबजादा फरहान का नेट पॉजिटिव नॉक था, I wasn't convinced with Fakhr's knock at all. Yeah. 2 चौके 2 छक्के। हाँ, it wasn't pretty. हाँ, I At mean, all. he scored 46 of 35. चलो माना यार आपने 35 बॉलें ले ली, 46 पे आ गए, you're playing a catch-up knock. Then deliver with the catch-up knock, right? ये तो फ्लॉ है catch-up knocks में. When you don't make the most of them, when you do not catch up, you screw the team over. हाँ, Fakhr is the second highest scorer and probably the second best batter as well in the final for Pakistan. But still, senior player, you expect him to be better. शिवम दुबे लगा हुआ है यार पावर प्ले में, मारो से। लग ही नहीं रही थी यार उससे। मैं इस पे फॉल्ट नहीं करूंगा कि वो ट्राई नहीं कर रहा था। आई थिंक उसका पता नहीं, उससे स्विंग ही नहीं हो रही थी क्या। कितनी तो प्लेन मिसेस थी फखर जमान की अर्ली ऑन, राइट? या पता नहीं पिच मिसरीड की है, टाइमिंग के लिए जाना चाहिए था, वो पावर के लिए जा रहे थे। मेरे लिहाज से तो यही हुआ। थोड़ी सी ब्लाइंड स्लॉगिंग तो थी शुरू में यार। द सरफेस वाज टू पेस्ड, इसमें कोई शक नहीं है, एंड द बाउंस वाज अनइवन एट टाइम्स। आउटफील्ड वाज बेटर देन व्हाट वी यूजुअली गेट एट DX, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, गलत ना समझो। आउटफील्ड बेहतर थी, बट द पिच वाज अ बिट टू पेस्ड, बॉल थोड़ी अनइवन बाउंस के साथ आ रही थी, काफी बॉलें बैठी। हां, स्लो साइड पे भी थी। A lot of those balls died down, but then again, you know that the power play is the most important phase of the game. You have to capitalize, especially when India's fifth bowler is bowling. मजे की बात ये
दोनों पावर प्ले पाकिस्तान जीता। मजे की बात तो है। बाय द वे आखिरी गलती फील्डिंग वाली थी, अब याद आ गई मुझे। अच्छा, वो फंसी हुई थी तुम्हारे फंसी हुई थी, मुझसे से निकली नहीं थी। मैंने कहा यार इतनी ज्यादा कर गए ना, बहुत ज्यादा है। दे ब्लिंक्ड फार टू मेनी टाइम्स और एक दफा तो कोमा था। सबसे बड़ी गलती तो बैटिंग कोलैप्स मैक्सिमस ही है। आधे से ज्यादा क्या 80% मैच वहीं हार गया। तो फखर को मैं पार नॉक पे नहीं बोलूंगा बिकॉज ही कुडंट कन्वर्ट, बट ही वाज द सेकंड बेस्ट बैटर। ही वाज, मगर ओनस उसके ऊपर था, ठीक है। इट वाज अप टू द सीनियर बैटर फखर जमान टू टेक इंडिया डाउन इवेंचुअली, ही कुडंट डू दैट एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक दिस वाज एक तो वैसी अंडरवेलमिंग एशिया कप था, और फिर यार फखर आपसे ये उम्मीद नहीं है ना यार, वी एक्सपेक्ट यू टू गिव इम्पेटस नॉट टू स्लो थिंग्स डाउन। लेकिन देन अगेन बेराम उसका अगर T20 आए ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, इट हैजंट बीन इंप्रेसिव, क्वाइट अंडरवेलमिंग तो है, ये तो फिर इशू तो है, कैवियाट तो है बड़ा हैवी किस्म का। और अब तो ये भी नहीं है ना कि उसको ओपन नहीं खिलाया, ओपन भी खिला के देख लिया। 2 सेकंड स्कोर कार्ड जरा खोलो, क्योंकि इस स्कोर कार्ड साहिबजादा फरहान scores 57 of 38, great stuff, didn't deserve to lose this game, best batter on the night. फखर जमान माना कि पार नॉक नहीं था, हमें मजा नहीं आया, should have capitalized, convert करता अपनी कैचअप नॉक को, नहीं कर पाया। Second best batter 46 of 35, second best batter of the night. Saim Ayub reached double figures for the second time in the Asia Cup. 14 of 11, poor dismissal, loose shot. मजा नहीं आया बिल्कुल भी, कैचिंग प्रैक्टिस ही करा दी फिर से। वापस बुमराह को ही कैच दिया ना इसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं वापस क्या मतलब पहले भी एक दफा बुमराह को गट शॉट पे उसी तरह आउट हुआ ना फिर से, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। 14 of 11, poor knock, but Pakistan's third best batter, and then he delivered with none for 16 in 3 overs. Should have been bowled out. उसके बाद साथ ही फोन नंबर है यार, 090078601 081600061। ये भी सही है, एक करते हैं जरा 081600061। यार मुझे दिखा जरा, मैं बता रहा हूँ यही है। नहीं मुझे तो नजर आ जाए ना, मैं जरा याद कर लूं। 081600061 आ जाओ। 081600061 टेलीफोन। बस यार मैच यहीं हारे हो यार अल्टीमेटली। हाँ फील्डिंग वाली गलतियां भी थी, कप्तानी की गलतियां भी थी, टैक्टिकल गलतियां भी थी, सिलेक्शन की गलतियां भी थी, मगर बैटिंग वाली गलती सबसे बड़ी गलती है। यस सर, और उसमें सबसे बड़ी गलती एंट्री पॉइंट्स है। यस, पहले मोहम्मद हारिस का एंट्री पॉइंट, फिर सलमान अली आगा का एंट्री पॉइंट, फिर हुसैन तलत का एंट्री पॉइंट। तीनों एंट्री पॉइंट्स वर रॉन्ग। भेजना हारिस की जगह चाहिए था नवाज को, उसके बाद आता है राणा जी या शीनो को भेज देते। जब मार आउट हो जाते तो लो वैल्यू विकेट है। ओ भाई अगर 2 लेफ्टी क्रीज पे होंगे क्या हो जाएगा? ये तीनों आपके पाकिस्तान लोअर मिड ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर इज बेल्ड देम आउट एंटायर टूर्नामेंट, आप चांस लो। और वो तीनों लेफ्टी हैं। हाँ तो फिर टीम कॉम्पोजिशन में मसला तो नहीं मुझे नजर आ रहा। नहीं यार आप भेजो उनको, आप बोलो तुम लोग मारो, मैं सलमान अली आगा बोले मैं और हुसैन तलत बैठे हुए हैं यार। आप किस तरह बैलेंस करोगे अगर फखर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ तीनों लेफ्ट, 6 के 6 लेफ्टी हैं। कभी आपको इतना मसला राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन में तो नहीं होता कि 2 राइटी हो? उनके भी तो दोनों लेफ्टी थे, तिलक एंड दुबे। हाँ दुबे, बाय द वे दुबे की गेम तो अच्छी थी यार, क्लच नॉक, 33 of 22 and then none for 23 in 3 overs. He had a really good. Oh, by the way, India has never lost a single T20I when Dube plays. 36 matches without a defeat when Dube is in the starting lineup. It's got to be some sort of record. 36-0. हाँ अभी चेक करना पड़ेगा, किसी के पास है तो प्लीज बता दे नीचे। बताओ मैं यार, that guy has never lost in an Indian jersey in a T20I. It's spectacular. Lucky चार में Dube, हालांकि ऑफ कलर जा रहा था वो भी, performed when the stakes were high. देखो ना, तो बात है ना, हार्दिक इंजर हुआ, इतना बड़ा धचका लगा, and their fifth bowler went for 32 runs, none for 32 in 4 overs. और बैटिंग में रिंकू plays the winning shot for 4, एक बॉल खेला चौका मार गया, और दुबे जो बाकी बैटर था, दोनों कंबाइन करो ना, वो मार गया 33 of 22। हार्दिक तो पूरा हो गया, हार्दिक से ज्यादा ही कर, कैसी बात है ये। Someone like Hardik Pandya who has ice in his veins, who is a finisher supremo, clutch central, वो नहीं था यार कल। आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए, इंडिया ने टैक्टिकल फ्लॉ की, they replaced him with a batter, आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मेरे लिहाज से अगर ओवरऑल एक समरी दूं ना मैं इस बात की, तो पाकिस्तान लॉस्ट द मैच बिकॉज पाकिस्तान वाज पुअर, नॉट इंडिया वाज ग्रेट।
पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान से हार गया फिर से। पाकिस्तान रियली शुड हैव वन दिस गेम। कैपिटलाइज करते हो स्टार्ट के ऊपर, एक विकेट गिरी हुई थी, 113 रन्स एंड 12.4 ओवर्स। यहाँ पे 158 ही होते, 10 और रन होते, आखिरी ओवर में 20 रन पड़ने पड़ते। एंड डोंट टॉक टू मी अबाउट हाइंडसाइट, बिकॉज़ अभिषेक मारते हुए आउट हुए, स्काई कटर पे आउट हुए, Yes. गिल मारते हुए आउट हुए। इंडिया वुड हैव बीन 20 for 3 regardless in 4 overs. Yes. And they were 20 for 3 in 4 overs. You done that bit. The funny thing is हमने ये भी कॉल आउट किया था कि even if you get अभिषेक शर्मा Yes. and a couple of wickets, इंडिया की बैटिंग डेप्थ और क्वालिटी इतनी है Exactly. कि आपको कंसिस्टेंटली वो करना पड़ेगा। Yes. और कंसिस्टेंटली नहीं नहीं, किया। you had to take wickets. You had good moments in the game. Exactly. You couldn't do it consistently. You had to take wickets at regular intervals. आपको मौके मिले, 2 मौके रन आउट मिले, चांसेस, गिल और तिलक वाला खास तौर पे। तिलक वाला बहुत important था। हसन अली की थ्रो थी वो, बाय द वे। हाँ, हसन अली जो Wasn't even playing. मैंने तो पहली दफा ही उसे एशिया कप में फील्ड पे देखा। और उसकी कमिटमेंट देख लो। हाँ। ही न्यू कि मैं यहाँ विकेट निकाल सकता हूं। मोहम्मद हारिस की प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं थी कोई। यार हारिस था वो स्पेस अबे हुसैन तलत यार माना कि कोई जान के कैच ड्रॉप नहीं करता था, वाज अ डॉली ब्रो। संजू ने एंड में फिर वो 24 रन कर गया, वो 12 पे आउट हो गया तो और प्रेशर पड़ जाता इंडिया के ऊपर, वो बैटर पहले आ जाता। सो नो, पाकिस्तान वर like 30-40 runs short, but even if they had 10-15 more runs, they could have won this Asia Cup. They could have been basing in Asia Cup glory right now. उस वक्त मेरे लिहाज से आप लोगों का दिमाग में शायद था कि हमने किसी तरह 190 तक पहुंचना है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हो चुकी हुई थी ना, यू शुड हैव जस्ट एम्ड के यार हम 160-165 के करीब किसी तरह पहुंच जाए। थोड़ा सा पीरियड था जहां पे आपको निगोशिएट करना था, क्योंकि डेथ में ओवरऑल अगर पाकिस्तान का एशिया कप में रिकॉर्ड देखे तो डेथ में मारे हैं। पावर प्ले उस तरह मैक्सिमाइज नहीं कर सके, लेकिन दैट्स बीन अ गुड फेज। मिडिल ओवर्स में हमेशा स्ट्रगल किए, Yes. हमेशा स्ट्रगल फिर से किए, स्ट्रगल कर दिया। और डेथ में यू बीन रियली गुड, लेकिन हाँ. अब तो नहीं ना। Throughout इस the मैच tournament. में जहां पे टाइम था वहां पे नहीं किया। Throughout the Asia Cup, Pakistan were phenomenal in the death overs with the bat. Yeah. And over here, they failed gloriously. Yes. क्या 128 for 4 थे ये 15 over mark पे? यार 146 all out in 19.1 overs. मतलब आपने 18 रन किए 4.1 overs में, आपकी पूरी टीम आउट हो गई, 6 विकेटें गिर गई। पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। You were 45 for none in the power play. We were saying it's a poor power play, but चलो विकेट नहीं गिरी। 87 for 1 in 10 overs. You were saying फिर भी अभी 10 रन कोई शॉर्ट है, चलो कोई नहीं, you're in the game. 113 for 1 in 12.4 overs. चलो यार 180-190 ऑन है। नहीं हो रहा ना, विकेटें गिर गई हैं, 160 तक तो पहुंचाओ। Yes. ये एम होना चाहिए ना। Exactly. वही बात है, बैटिंग ऑर्डर फक अप कर गया है। हाँ, बैटिंग ऑर्डर या पता नहीं क्या किया वहां पे इसने। खुद क्या किया इन लोगों हम ने। हमेशा बैटिंग के ऑर्डर की बात नहीं करते जिस बात में, हम हमेशा एंट्री पॉइंट्स की बात Yes. करते हैं यार। बैटिंग ऑर्डर जो मर्जी रखो। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि you need to have your batting order dynamic and fluid at all times. Flexible, dynamic, fluid, जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर और लो। इन्होंने नहीं इस दफा किया, पूरे टूर्नामेंट में नहीं किया। उससे पहले भी ट्राई सीरीज में भी नहीं देखा। सलमान अली आगा पावर प्ले में आ रहा होता था। वो कजन सहल कल तो 8 of 7 बना कर गए, that's a plus knock for him. 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट थी। In his last 17 innings, सलमान अली आगा has scored 254 runs in 265 balls. That's a strike rate of less than run a ball. He's averaging in the teens. अब मुझे पता नहीं कितनी गिर गई होगी, पहले 19 से हल्की सी कम थी, अब और गिर गई होगी। Yes sir. क्या आप कर रहे हो यार? आपने कप्तानी फिर ठीक कर लिया। I thought that giving the new ball to Rana Fahim and Shino was the right call. And 3 overs to Shino in the power play when he was bowling really good, right call. दोनों को, the fact that he gave 3 power play overs to Shaheen Shah Afridi and 3 Rana power Fahim. play overs to Rana Fahim, that was even a better call than giving them the new ball. हाँ. दोनों चीजें आपने ठीक कर ली। उसके बाद आपने आगे गलतियां कर दी। वो अबरार को ओवर दे दिया, लेफ्टी से खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी बता दिए। वैसे तो 1 for 29 इज नॉट बैड बाय अबरार। हाँ, It's but all then right, again, but उसको कराना नहीं चाहिए था। उस स्टेज पे नहीं करवाना नहीं करवाना चाहिए था यार। कितने रन पड़े थे उसे उस यार पड़ गए थे उस पड़ गए थे, कोई 11-12 पड़े थे। हाँ, और ऊपर और से उससे पहले 17 पड़े हुए थे। एग्जैक्टली। सो आपके पास ऑप्शन क्या थी उस टाइम पे? यू कुड हैव बोल्ड साइम अयूब, व्हिच वाज द बेस्ट ऑप्शन, और खुद आ जाते वरना यार लेफ्टी लगे हुए हैं। अबरार को लेफ्टियों के आगे भेज दिए। यू आर फीडिंग हिम टू द वुल्व्स। डोंट यू नो, अगर हम ढूंढ सकते हैं क्रिक मैट्रिक से, अगर हमारा जानी नजम ढूंढ सकता है क्रिक मैट्रिक से कि अबरार T20s में लेफ्टीज के खिलाफ बहुत गंदा है, तो आप भी देख सकते हो। बेसिक स्टफ है, 2025 है यार, ये 1990s नहीं है। Yeah. ये तो हम अगर यहाँ पे बैठ के रेडली ये 2 सेकंड में मैंने आपको स्टैट्स खोल के दिखा दी, तो ये तो सीधी सी बात है यार। लॉट ऑफ मिस्टेक्स मैन। 8 गिनी है हम लोगों ने। दिस इज टू मेनी, फार टू मेनी। और 8 भी मैं सारे फील्डिंग वालों को एक में क्लब कर रहा हूँ। वो अगर मैं तोड़ूं तो 11 कुछ 10-11 बन जाती हैं यार। हद है वैसे।
poor stuff. It's really really poor stuff. Pakistan have only themselves to blame. But हमने वो 3 प्लेयर जो earmark किए थे जिनकी तारीफ करनी है, साहिबजादा की तो कर दी. Let's talk about राणा जी. राणा जी यार, राणा impressive. माहिन कह रही थी कि राणा जी अपने जितनी उनकी कैपेबिलिटी है ना उससे ज्यादा ही करके थे यार. I mean, good that he opened the bowling, removed Abhishek Sharma with his first ball. Crazy. Insane. Abhishek Sharma, player of the tournament, deservedly so. Yes. पड़खचियां उड़ाई हैं उसने, पड़खचर्स, और उसके वहां पे लॉ ऑफ एवरेजेस अप्लाई कर गया, स्काई और साइम पे नहीं किया. ठीक है, मगर अभिषेक को आपने जल्दी निकाल दिया यार. ही वेंट फॉर 6 बॉल 5. उसके बाद राणा जी इन हिज सेकंड ओवर और थर्ड ओवर वाज इट थर्ड ओवर ही गॉट रिड ऑफ शुभमन गिल फॉर 12 ऑफ 10 डिलीवरीज इन 3 पावर प्ले ओवर्स. राणा जी वाज 2 for 22. इट ओनली गॉट बेटर फ्रॉम देयर. ही पुल्ड अप in that penultimate over of the innings. Death over कराया राणा जी ने, मगर यार ठीक हो गए. He gave only 7 runs when India required 17 of 12, and he removed Shivam Dube. Ends with figures of 3 for 29. This might be his best performance with the ball ever in his entire career. गेम की आप देखो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम, उसके अंदर रिमूविंग their best player Abhishek Sharma, I think removing their second best player in this tournament Shubman Gill. या शोर तिलक हो गया अब वैसे. बैट अब तो तिलक हो गया with the bat, और removing Shivam Dube who was batting so well. That's crazy Rana ji. Very well played. Very well played. थोड़ी सी बैटिंग में मुझे अभी भी इशू है यार. You should have just वो कुलदीप का ओवर निकाल, वो वाला कुलदीप का ओवर निकाल देते, बैटिंग में गलती कर गए. यहाँ पे अवेयरनेस का मसला है ना. ये तो सीख सकते हैं चीजें यार. आई नो, ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कि यार आप लोगों की स्किल्स नहीं मैच होती इंडियन टीम से क्योंकि बहुत ज्यादा गल्फ है उसके अंदर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. बाय द वे, लेकिन ये चीजें तो आप अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेटजीज, ये तो सीख सकते हो यार. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. नहीं, बिल्कुल गलत था वो. यू शुड हैव सीन ऑफ कुलदीप और फिर एंड में आप मारते. आप जरूरी थे वहां पे, और पीछे कोई रह नहीं गया था. यही वो है तो टैक्टिकल ब्लंडर किनको पहले भेजते. ओवर्स, डेथ ओवर चल रहे. वो तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है. बट राणा जी ने बॉल के साथ काम पूरा कर दिया. आई एम विलिंग टू एक्सक्यूज हिम विद द बैट. तुमने गेम अवेयरनेस की बात की, मेरे ज़हन में और गलतियां आ गई. हां, बताओ. रनिंग बिटवीन द विकेट्स, पूरा सुपर 4 स्टेज आपकी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी. यू वर कन्वर्टिंग 2s to 3s, 1s to 2s. फाइनल में आकर सब खत्म. द 3s वर 2s, द 2s वर 1s. क्या किया आपने ये? ऊपर से इंडिया वर shoddy in the field throughout the Super 4 stage. They stepped up big time. कोई 2 मैचों में 10 कैच ड्रॉप कर दिए थे उन लोगों ने, but in the final they did not drop a single catch. They were brilliant on the ground as well. Ground fielding was immaculate. They stopped so many runs. इतनी अच्छी ground fielding थी कि they must have stopped at least 10 runs in the field. 5 तो मैंने पहले ही गिनवा दिए थे लाइव में. They were exceptional as far as their ground fielding was concerned, and they took all their catches. और रिंकू, उसकी contribution कितनी है यार? रिंकू के पापा प्राउड होंगे. विनिंग रन्स मारे, इतने कैच पकड़े. लेकिन और पाकिस्तान ने वहीं पे गलतियां कर दी. 2 नॉट मिस कर दिए, कैच ड्रॉप कर दिया. उनकी फील्डिंग एक्सेप्शनल. उन्होंने रन्स रोके, उन्होंने कैचेस नहीं ड्रॉप किए, और आपने और एडवांटेज दे दिया. जहां पे बन रहे थे रन वहां पे लिए नहीं, तो वो भी डिफरेंस एग्जैक्टली डबल हो जाता है. अब गलती का काउंटर चला गया 12 पे. मैं ये एंड में करूंगा, फिर से तुम तपोगे नहीं. मैं अभी से तप गया हूं, तुमने ये बात कर दी है, क्योंकि ये जरूरी है. नोमी इसके लिए था रील बना ली यार. बना ली. Anyway, राणा जी की बात हो गई. He also, like Sahibzada Farhan, did not deserve to lose this game. Sheeno yaar finally steps up. Since that T20 World Cup win versus India, Shaheen Shah Afridi had taken 1 wicket versus India in I think 4 games. Average of 126, economy of 9.1. Over here he was entrusted with 3 power play overs. Good move by Cousin Sal. And great bowling by Shaheen. Great bowling. एक आधी गंदी बॉल थी, लेकिन उसके अलावा he was on the money. He clocked 145 clicks like twice. मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. आंसू नहीं होते, अथरू आ गए थे. अथरू आए तुम्हारे अथरू आ गए थे. 145 शाहीन, और खतरनाक बॉल थी यार. और शीनो ने ब्रेनलेस बॉलिंग नहीं कराई. ही हैड इम्पेकेबल लेंथ्स. बैक ऑफ अ लेंथ या गुड लेंथ पे कराता गया. ही वेरीड स्पेस एक्सेप्शनली वेल डन शाहीन. और यार इन 3 पावर प्ले ओवर्स हिज फिगर्स रेड 1 for 14. फिर वापस आया. इंडिया रिक्वायर्ड लाइक 36 रन्स इन 4 ओवर्स. एंड आई थिंक उस वक्त बिल्कुल सही टाइम पे लाया था. बिल्कुल सही टाइम पे. लोग कह रहे होंगे बाद के लिए रोक लो उसे, लेकिन आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान को विकेट की जरूरत थी. वो आई नहीं, लेकिन शाहीन ने रन भी नहीं दी. नहीं, he only conceded 6 runs in that death over, ended with figures of 1 for 20. He performed big time in the Super 4 stage and the final. 3 मैचेस लगातार आपने शानदार परफॉर्मेंसेस खड़ी की हैं. बैटिंग में नहीं कर पाया, उसकी नौकरी भी नहीं है, वो लो वैल्यू विकेट है. और अंपायरिंग क्या थी? जब वो आउट था मुझे लग रहा था तब दिया नहीं, फिर वो ग्लव कर रहा है तो दे दिया. शिट अंपायरिंग थ्रू आउट द एशिया कप, आई एम सॉरी टू से.
शिजू भाई को लाओ, शिजू भाई को लाओ, मैं तो कहता हूँ उन्हें पकड़ा दो ठेका। वाकई जो भी दुबई में होगा ना शिजू भाई, हमारे थर्ड अंपायर भी होंगे, हमारे ऑन फील्ड अंपायर्स भी होंगे। If anyone's listening in the ICC, I want Shiju CCTV fan कह दिया मैंने। हम हैं हम फैन ही है ना असल हम में। फैन है। I want Shiju CCTV Sam to be inducted into the elite panel instantly. ASAP, no Rocky. Exactly. इतनी गंदी अंपायरिंग बहुत गंदी थ्रूआउट द टूर्नामेंट इट हैज बीन पिस पुअर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अंपायरिंग नहीं थी Yeah. ये ऑनेस्टली क्लब लेवल क्रिकेट में शायद इस तरह के अंपायर्स होते हैं। और व्हाट इज हैपनिंग? ये तुम बात जब कर ही रहे थे ना, बात तुम सही कर रहे हो। शिट अंपायर, Yeah. पता नहीं क्या वो पख्तीन भाई क्या फूंक के आते हैं। ठीक है, स्काई वाला भी डिसमिसल इतना गंदा था वो जो नहीं दिया था। वो तो मुझे समझ ही हाँ. नहीं। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन Yeah. इन दिस टूर्नामेंट। This is one of the worst decisions I've seen in my life. हाँ. ठीक है, इस फाइनल में भी गलतियां थी, वो दूसरे भाई गलतियां कर रहे थे। हाँ, वो उनका नाम मुझे अभी तक नहीं आता, मैं एक दफा देख He's श्रीलंकन, but I don't know his name। मगर वो जो एक क्वार्टेट बनता है ना शिट अंपायर्स इन हिस्ट्री, उसमें बिली डॉक्ट्रोव, जोल विल्सन, पख्तीन भाई और ये जिनका नाम हमें नहीं आता। ये बांग्लादेश से है, मसूद उर रहमान। वैसे तो डैरल हेयर भी आता है इसके अंदर, वो पांचवा वो है, उसको मैं भूल गया था। Can't miss Daryl Hare in this, bro. वो तो रेसिस्ट आदमी भी था, वो तो था। मुरली के साथ, एनजी के साथ, कहाँ नहीं उसने रेसिज्म की। Daryl Hare is also there, bro. और लोग कहेंगे स्टीव बकनर, लेकिन स्टीव बकनर शुरू में अच्छा था। शुरू में बहुत अच्छा था, एंड में हाँ, एंड में मुझे लगता है सारी थोड़े ऑब्वियसली डाउन होने ही बनता है यार। he was an old man, और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी बकनर की तो। अच्छा, तुम ये बातें कर रहे थे ना जब, मुझे एक और गलती याद आ गई। एक और है, पाकिस्तान बैटर्स वर्सेस स्लो लेफ्ट आर्मर्स। वो तो गलती नहीं है, वो तो पता ही है हमें, वो तो- ट्रैक रिकॉर्ड है ब्रो। वो तो रग में है। अक्षर पटेल, उसपे किताबें लिख दी गई होंगी अब तक। अब तक तो लिख देनी चाहिए, नॉवेल्स होने चाहिए उसके ऊपर। अक्षर पटेल ended with very good figures of 2 for 26. really good. Exceptional Really figures in a final. really good. But पाकिस्तान का सीन ये है कि when a slow left arm orthodox spinner is bowling, whether he is Akshar Patel, Keshav Maharaj, Simranjeet Singh, Haider Ali, Anyone. पाकिस्तान will falter. Anyone. नहीं आते स्लो लेफ्ट आर्मर खेलने, तभी तो हम कह रहे थे नसोमु खिला देती बांग्लादेश, वो ना खेली जाता, पाकिस्तान से ना खेला जाता। पता नहीं क्या सीन है इनका, मुझे नहीं समझ आई। अक्षर ने कोई इतनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। देखिए पाकिस्तान ने आधी से ज्यादा तो विकेटें दी हैं यार, मैं यही कह रहा हूँ। 2 for 26 वाली बॉलिंग नहीं कराई, but those are still really good figures and I don't want to take anything away from him. Good on you, Akshar. लेकिन आई वुड अक्षर, इट्स नॉट अ बिग डील पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर आउट। Yeah. I mean, if you, मजाक कर रहा हूँ, पढ़ ना जाना मेरे। if as a cricketer you want to have any sort of success against Pakistan, just learn how to bowl slow left arm orthodox spin, you'll be sorted. Yeah. पाकिस्तान से नहीं, bowling type नहीं खेली जाती, forget the quality of the slow left armer. Bowling type. पाकिस्तान cannot play the bowling type. अब वाकई count lose हो गया। Damn, 13 कुछ 13-14 पे चले गए हम मिस्टेक्स पे यार, that's a lot. 14 नुकात ही निकाल लेते हैं फिर हम भी। यार वैसे पता है आपस की बात है, this might not be the worst reel in the world. एंड पे कर ली यार। हाँ कर भी लूंगा, बाय के बाद ही करी हैं। बाप तो बाद में ही होगा। खैर यार, गुड ऑन यू शीनो, उसकी बात कर रहे थे, 145 भी क्लॉक किया आपने पेस भी शानदार वेरी की और लेंथ्स वर इमैक्युलेट। यू अंडरस्टूड द टास्क, आप सीख कर आए। ठीक है, यू अंडरस्टूड कि आपको क्या चीज बेहतर करनी है इंडिया के खिलाफ, एंड वेयर डू यू नीड टू पेपर दोस बैटर्स, यू डिड दैट रोल और प्लेड दैट रोल टू परफेक्शन। ये 3 लड़के जो है ना, ये बेचारे हार्ड लक really well played। शीनो, राणा फहूम एंड साहिबजादा फरहान, बाकी सब तो यार डिजर्व ही करते थे हारना। Yes। ठीक है, और इंडिया डिजर्व करती थी जीतना। हाँ। बिल्कुल, सीधी सी बात they है। were the best team and वो scrape away करते गए, victory after victory after victory, W after W after W, and end of the day they won the Asia Cup unbeaten. They won the Champions Trophy unbeaten, they won the T20 World Cup 2024 unbeaten। They would have won the ODI World Cup unbeaten had they not lost the final to Travis Head. Yes sir। Australia भी क्या? नहीं, that was Travis Head। Travis Head ही था। Travis Head था भाई। और कमिंस ने जो कोहली को आउट किया था वो भी फिट था। Wow। That was a very Edged on, yeah। crucial moment of KL राहुल की इनिंग्स। कहाँ चले गए हम लोग? हाँ अच्छा, वो हमने किया है वो कवर, वो जाके देख लीजिएगा। मुझे तुम बताओ, Yes। कजन सैल के भी मैंने तुम्हें बैटिंग नंबर्स बताए हैं। 17 innings, 254 runs in 17 innings and 268 balls. That's a big enough sample size. He's Yeah, not देखो- striking it at run a ball. He's averaging nothing. देखो वो दुनिया का बेस्ट कैप्टन भी होता ना, जो कि बाय द वे नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तानी फिर बेहतर की है, बट कोई इस तरह की एक्सेप्शनल कप्तानी नहीं कि जो कोई और नहीं कर सकता। नहीं, पूरी दुनिया में तुम बेस्ट कैप्टन उठा के ले आओ यार, लेकिन आजकल की क्रिकेट में आप सिर्फ कैप्टनसी की बेस पे नहीं खेल सकते। You can't be a Mike Brearley No. in modern day cricket. I'm can't. sorry. No. शान मसूद पे यही प्रेशर होता है। No. You're averaging around 30 in Test cricket. You तो need to perform with the best। एक गंदी सीरीज का मतलब है लोग सवालिया निशान उठाने लग जाएंगे, जो कि
प्रेशर तो है, जो कि बनता है ना, सही बनता है. It's fair, right? As much as I love Sean and I think he's a good person. I think he realizes it himself as well कि यार I need to perform with the bat, वरना आप जगह खा रहे हो. बिल्कुल. तो यार सलमान अली आगा, as well as you captain, you are currently a liability in this team. आपसे बैटिंग ही नहीं हो रही. बैटिंग हो ही नहीं. It seems like you're not cut out for T20 cricket at all. तो फिर क्या करना है इसको? फिर तो मुझे बताओ, there are two things Pakistan can do. या तो अभी कप्तान बदलो क्योंकि अभी टाइम है वर्ल्ड कप तक, या तो फिर गिव हिम द साउथ अफ्रीका T20 आइज एंड द ट्राई सीरीज डायरेक्टली आफ्टर दैट बिटवीन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. क्या कर रहे हो? अगर तो वो ट्राई सीरीज तक कैप्टन रहता है ना, तो फिर तो आपको T20 वर्ल्ड कप तक ही कैप्टन बनाना पड़ेगा. उसके बीच में एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही है और तो कुछ नहीं है. दैट्स नॉट इनफ टाइम कि नया कैप्टन आके टीम संभाले. अब ये भी नहीं पता शादाब का क्या सीन चल रहा है. इफ शादाब्स नॉट फिट देन शाहीन's the candidate, right? Isn't he the obvious choice then? मैं उस पे अभी आ नहीं रहा कि वो कौन बनाएंगे नहीं ना, यस मैन नहीं है शीनो. वो उस पे मैं नहीं आ रहा कि कौन कैप्टन बन रहा है या नहीं बन रहा. मैं थोड़ा सा अगर वैसे व्यू करूँ ना इसको, अगर सलमान अली आगा के साथ स्टिक करना है तो फिर आप बीच में नहीं कैप्टन चेंज करोगे. टाइम यही है. If you want to change, this is the time. If you want to continue with him, then you continue till the 2026 T20 World Cup, which I don't think would be a good ploy. क्योंकि वहाँ पे भी सीन तो यही होना है ना, क्योंकि आप खेल रहे हो सिमिलर काइंड ऑफ पिचेस पे. ठीक है, थोड़ी सी स्लो स्लगिश होंगी जो हमने देखा है श्रीलंका में. और फिर सलमान अली आगा ने यहाँ पे अगर नहीं किया, ट्राई सीरीज में नहीं किया उसने, इधर नहीं किया, बांग्लादेश अवे में नहीं किया उसने, वेस्ट इंडीज में नहीं किया, आई मीन सॉरी यूएस में नहीं किया उसने, फ्लोरिडा में, तो फिर क्या है? वही बात है ना, 17 गेम्स इज अ वेरी बिग सैंपल साइज. या तो होता ना कि यार ओ माय गॉड एक सीरीज में फेल हो गया है, कोई मसला 4 सीरीज, दैट्स ठीक है. Lord He was only good in New Zealand in that home series versus Bangladesh, and after that he's been terrible, atrocious, horrendous. That's बहुत ज्यादा मैचेस हैं. बहुत ज्यादा मैचेस हो गए हैं यार ये. और पता है, I have a slightly different view on this. मेरे हिसाब से अगर टीम का ईथॉस कायम है हैसन के अंडर, जो बाय द वे उसकी भी बात करनी है मैंने, सही है, आएंगे हैसन के ऊपर. अगर टीम का ईथॉस ठीक है तो इट डजंट मैटर कि आप 2 सीरीज देकर ट्राई कर निकालो या अभी निकालो, क्योंकि टीम का वही वाला मंत्रा चल रहा है. 2 सीरीज ट्राई करने का क्या पॉइंट है? चांस दे तो थोड़ा सा लंबी रोप देने वाली बात है, बट ही हैजंट प्रूवन हिमसेल्फ. चलो ठीक है, अगर 2 सीरीज और देके ट्राई करना है, जो आपको पहले 17 मैचेस में पता चल जाना चाहिए, वो आप आगे कितने, बात तुम्हारी भी गलत आगे 7-8 और मैचेस ले लो, फिर ना रोना उसके अव्वल तो मैं हक में नहीं होता टू मच चॉपिंग एंड चेंजिंग के, और कि मैं भी कहता हूं कि यार कप्तान को बैक करो, बट देयर इज नथिंग विद द बैट दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज हिज पोजीशन. मैं कह रहा हूं लायबिलिटी है विद द बैट, कितना और बोलें. सॉरी कजन सैल यार, आई नो यू आर अ गुड पर्सन. ऑनेस्टली आई लव यू. आई थिंक टेस्ट के तो आप श्योर शॉट वनडे में भी लेकिन यार कुछ आप फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं कर सकते. दिस इज नॉट गुड विद द बैट. आप लिटरली क्रिपल कर रहे हो हमारा मिडिल ऑर्डर यार. क्रिपल इज द करेक्ट वर्ड. हैंडीकैप ही कर देते हो आप यार. जब ये बना था T20 कैप्टन, वी वर लाइक ओके, वी आर विलिंग टू गिव हिम टाइम बिकॉज़ ही इज अपस्किल्ड इन एवरी फॉर्मेट. टेस्ट में बिट्स एंड पीसेस लग रहा था, वे मोर देन बिट्स एंड पीसेस. ओडीआईज में हमने कहा रखो इसको 5 पे, कंट्रीब्यूट करता रहेगा, ही कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन. ही मैनेज दैट रियली गुड. और यार उसके बाद हमने कहा चलो T20 में ट्राई करके देख लो, मगर ही इज नॉट एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इन T20s. I'm sorry, You've proven that you aren't fit to play T20 cricket based on this evidence, yaar. और ऊपर से यार, then when you dropped Hasan Nawaz, the guy who you should have built your T20 team around, जो the sort of guy who can turn the game on its head and take it away from the opposition, complexion बदल सकता है पूरा, मैच विनर है वो, मैच विनर. He can turn the complexion of the game, यार. मतलब आपने उसको बिठा दिया 2-3 इनिंग्स के बाद यार इतना फेथ नहीं था. फेथ रखते हैं ना थोड़ा सा, फिर कायम रहते हैं अपनी बातों के ऊपर. नथिंग अगेंस्ट तलत यार, मगर अगर तलत आपकी बेस्ट ऑप्शन आपको लग रही है, और अगर आप सलमान अली आगा और हुसैन तलत को एक ही टीम में खिला रहे हो, दैट्स ऑन यू. और ये माइक हैसन पे भी क्रिटिसिज्म है, और ही इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. यस ही इज 100%. हुसैन तलत अगेन आई फील वनडे में आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है. वहां पे भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगेन हुसैन तलत एंड सलमान अली आगा आगे पीछे थोड़ा सा स्लो तो हो गया. आप T20 में तो पॉइंट ही नहीं बन रहा है. कौन क्या यार, मैं क्या बोलूं अब, आगे किसी और चीज पे चलते हैं. मैं बोलने लग जाऊंगा ना तो फिर माहौल खराब हो जाए मेरा. ऊपर से फिर चलो यार, मैं फिर कहता हूं कि ठीक है, बैटिंग में भी आपने फक अप कर दिया, कोलैप्स मैक्सिमस हो गया, बट देन अगेन इंडिया को आपने 20 for 3 कर दिया था 4 ओवर्स में. द गेम वाज ऑन. पाकिस्तान हम कह रहे हैं ना, नॉट द बेस्ट पावर प्ले, 45 for none. India were 36 for 3. Pakistan was way ahead at the 10 and 15 over marks, by the way. हाँ, Pakistan at the 10 over mark was 87 for 1. India 58 for 4.
पाकिस्तान ने 15 overs 128 for 4, इंडिया 100 for 4. आप पूरे एशिया कप डेथ ओवर्स में बैटिंग अच्छी करते रहे, बॉलिंग अच्छी करते रहे, इस दफा या उल्टा हो गया? हाँ, इस दफा चलो डेथ ओवर्स में अगर बैटिंग ना हुई होती ना, वो एक अलग बात था, अगर एंट्री पॉइंट्स ठीक होते। यहाँ पे तो मसला उस चीज का सही था बात ना। कर रहे हो, इट डज कम डाउन टू द कॉम्बिनेशन. आपको क्यों नहीं समझ आई इस चीज की? अगर तो ये होता कि यार चलो उसी तरह आपने खेला है और डेथ में इस दफा नहीं चले तो नहीं चले, इस दफा तो अपेरेंट था यार किस पोजीशन पे किस प्लेयर को भेजना चाहिए। 7वें 8वें ओवर में विकेट गिरी होती तब आ जाओ, हाँ। अभी नहीं जरूरत बनती थी यार, कोई सेंस नहीं थी, देयर वाज नो लॉजिक इन कमिंग आउट टू बैट एंड देन हैविंग बोथ ऑफ कजन सैल एंड हुसैन तलत एट द क्रीज एट द सेम टाइम. हम कह रहे टीम में नहीं होनी चाहिए, वो क्रीज पे एक टाइम पे थे. आप आ गए, ठीक है, हाँ। हमने वो भी जाने दिया, फिर अगला बैटर तो कुछ मोहम्मद नवाज ले आओ, कोई ले आओ, शाहीन को लो वैल्यू विकेट की तरह प्रमोट कर दो। हुसैन तलत आ गया बिल्कुल ही मोमेंटम किल करने, और फिर ऑब्वियसली इतनी पुअर शॉट के लिए हुसैन तलत ने, ही गॉट आउट, एवरीवन जस्ट मैं इसलिए कहता हूं कि इवन इफ पाकिस्तान हैड 15 रन्स मोर, लोग कह रहे हैं ना कि वो हाइंडसाइट इज 2020, इंडिया फर्क खेलती, इंडिया फर्क ना खेलती, वो मारते हुए आउट हुए हैं. अभिषेक शर्मा मारते हुए आउट हुआ, थैंक्स टू इरफान पठान बाय द वे. हाँ, by the way, here this Abhishek Sharma's failure in the final hereby confirms that the Irfan Pathan curse is real. वहां लॉ ऑफ एवरेजेस चली है सिर्फ, और कहीं नहीं चली. मगर वो राणा फॉर्म की विकेट है, अच्छी खासी विकेट है, कटर था, गुड लेंथ पे कटर, या और नई टाइम हुई तो बिल्कुल गया. परफेक्ट प्लान्स. स्काई को भी बिल्कुल ठीक कटर पड़ा. जस्ट बाय द वे शाउट आउट टू बैकवर्ड पॉइंट. Yes. मैंने उनकी रील देखी है, उन्होंने पॉइंट आउट किया था राणा फहूम इज द बेस्ट बेट टू गेट अभिषेक शर्मा आउट ऑन अ गुड लेंथ. This is, क्रैम्प हिम फॉर रूम. वो बात पूरी नहीं हुई, रूम तो दिया था उसे, लेकिन वो स्लोअर वन, लेकिन मैचअप परफेक्ट प्रिडिक्ट कर दिया था उन्होंने. नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि राणा फहूम अभिषेक शर्मा को आउट कर सकते थे, नजर एंड बशार, गो ग्रैब योरसेल्फ अ बेवरेज. Yes, sir. ठीक है, लाजमी. शाउट आउट टू यू गाइस, गुड ऑन यू या. गाइस. सो वही कहता हूं यार, Lovely. अल्टीमेटली यू हैड इंडिया अंडर प्रेशर डिस्पाइट फेलिंग मिजरेबली विद द बैट आफ्टर स्टार्टिंग सो वेल. मेरे लिहाज से तो इंडिया स्टेप्ड ऑन टू द पिच के हम जल्दी मैच खत्म करेंगे. या वो इसी तरह आए थे, बिल्कुल, वो मारते तीनों मारते. वही तो मैं कह रहा हूं, ये 147 के टारगेट की जगह 160 का टारगेट होता, वो यही करते. तो ये हाइंडसाइट वाली बात नहीं है, हैड दे गॉन स्लोअर फिर आप बात कर सकते थे, बट दैट डिडंट हैपन. इंडिया वर स्टिकिंग टू द रेगुलर अप्रोच, और फिर विकेट गिरी तो फिर वो कंजर्वेटिव हुए. उसमें भी संजू ने चांस दे दिया था, संजू ने चांस ड्रॉप कर लिया यार. वही कह रहा हूं कि तिलक रन आउट होने वाला था, वो नहीं हुआ. गलतियां गिनने पे आओ तो उंगलियां मुक जाती हैं, वाकई मुक जाती हैं यार, जाती हैं वाकई. Anyway. हाँ, 13 तो होगी निकलती हैं. हाँ, 13 तो कम से कम गिनी है हमने, वो क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्लो लेफ्ट आर्मर भी डालो इस सब के अंदर, ठीक है. और फिर इंडिया वाज सो गुड इन द फील्ड, दे स्टेप्ड अप व्हेन इट मैटर्ड. यू गॉट टू गिव देम क्रेडिट, एंड यू गॉट टू गिव देम क्रेडिट फॉर काइंड ऑफ रेस्क्यूइंग द बैटर्स, फॉर रेस्क्यूइंग इंडिया फ्रॉम अ ट्रिकी सिचुएशन. संजू को भी थोड़ा मिलता है, तिलक को सबसे ज्यादा मिलता है, तिलक और दुबे को बहुत ज्यादा मिलता है. बिल्कुल, वेरी वेल. अच्छा, बुमराह का बड़ा इंटरेस्टिंग एशिया कप था बाय द वे. ही डिडंट हैव द मोस्ट सक्सेसफुल एशिया कप. टॉपसी टर्वी, बांग्लादेश के खिलाफ ब्रिलियंट, 2 for 18 था शायद उसमें. पहला जो पाकिस्तान का मैच था पिटा था, मगर चलो 2 for 28, इट्स फाइन. 2 for 28 उस वक्त हम कह रहे थे बुमराह पिट गया. बुमराह के लिए फेलियर ही था वो. फिर नन फॉर 45 वर्सेस पाकिस्तान, और फिर यार इस फाइनल में इन 2 पावर प्ले ओवर्स बुमराह वेंट फॉर नन फॉर 18. फिर वो डेथ में आया, ही टुक 2 विकेट्स इन 7 balls and conceded 7 runs, ended up with figures of 2 for 25 and 3.1 overs. But Saadi, एक सेकंड, मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा. तुम मुझे ऑफ कैमरा ये बता रहे थे बुमराह तुम्हारा फेवरेट एवर इंडियन प्लेयर है, राइट? Yeah. हाउ डिड इट फील जब उसने ये सेलिब्रेशन किया आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट वेंट ऑन? I didn't like it. It was very poor, because when you look at a player of Bumrah's or Jasprit Bumrah's stature, such a dignified cricketer, he has no haters, or had no haters at least. यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि I can understand why he did what he did with the plane celebration, because you could say that maybe Haris Rauf deserved it, but then again, why are you stooping to that level? But then again, 30% फाइन नहीं बनता बनता है. जब सबको 30% फाइन पड़ा है, तो बुमराह को भी 30% फाइन पड़ना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो ब्रॉट आउट अ वॉर जेस्चर एंड ही इज पोलिटिसाइज्ड द स्पोर्ट. और इस पे तो यार अब हम कहाँ ही शुरू करें, इट्स सच एन एग्जॉस्टिंग कॉन्वर्सेशन. Just by the way, I am so glad this Asia Cup is over. वाकई. And we'll focus on other things, other cricket matches, not Pakistan, India, and this political bullshit that we've been put through as cricket fans. वाकई. All of this moral posturing and playing to the gallery and performative bullshit. I'm glad it's over. Just by the way, सलमान अली आगा की जहाँ पे हमने criticism किया ना, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगा. I think उसका press conference में ना, post match after the tournament जो press conference किया, I think he was brilliant. जो उसने जवाब दिए,
इज लाइक यार पहले तो उससे पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रेफरी के रूम में भी मेरे से हाथ मिला है स्काई ने। पोस्ट मैच बोले जानो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रायर टू द टूर्नामेंट भी उसने मोहसिन नकवी और मेरे से हाथ मिला है। तो फिर जब कैमराज आए तो फिर उनकी वो परफॉर्मेटिव चीज़ें आई तो फिर उन्होंने नहीं किया। He did not only disrespect us, but he disrespected cricket. Yeah. And I agree with you, Salman Ali Agha, 100%. हिपोक्रेसी तो है और आई डोंट लाइक द आर्ग्यूमेंट कि दे स्टार्टेड इट बिकॉज ये तो 12-year-old की आर्ग्यूमेंट होती है कि वो उनने शुरू किया, मगर हाँ आपके ऊपर फिर ये होता है कि आप कॉल आउट करो, कॉल आउट द बुलशिट इन अ क्लासी मैनर करेक्टली। यू शुडंट बी स्टूपिंग टू दैट लेवल। इसलिए मैं कहता हूं कि मॉरल एशिया कप ले गई ओमान, मेरे जितेंद्र पाजी, कलीम पाजी एंड शकील पाजी। शकील भाई विद दैट गेम फेस and his cricket, serious cricket. Kalimuddin Siddiqui bhi, bro. Kalimuddin Siddiqui with 3-4 versus Pakistan with the ball, 50 versus India with the bat. और फिर जितेंद्र पाजी की वो cute, lovely antics. ये ओमान दिल जीत गई और वो मॉरल एशिया कप भी ले गए। पाकिस्तान एंड इंडिया जॉइंट लास्ट, रीलिंग एट द बॉटम। I don't think they're joint last. बल्कि मेरी तरफ से तो श्रीलंका बांग्लादेश की भी कोई लड़ाई हुई नागिन डार्बी में, वो भी ऊपर। I don't think they're joint last, by the way. अच्छा, I think India is lower than Pakistan. I'm sure a lot of people feel that way. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यार But then again, Pakistan weren't good at all. मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन the problem is India did go overboard. When the sport is politicized, your response should not be to double down or triple down and politicize it even further. यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती की, वो बैक एंड फोर्थ होता रहा, एंड में सियासतदान भी इन्वॉल्व हो गए, नैकर्स ने ट्वीटें की फजूल तरीन, कल मोदी की भी मैंने देख ली है, फुल पोलिटिसाइजेशन। तो क्या कह सकते हैं, क्या ही कह सकते हैं। और हाँ, एक बात मैंने करनी थी, तुमने बात की सलमान अली आगा की। Both Sky and Salman Ali Agha said that we want to donate our match fee to the victims of Pahalgam and the India-Pakistan war. You could have done this from the get-go. No one was going to say anything over there. नहीं तो वो ये वाली सारी परफॉर्मेटिव बुलशिट कैसे करनी थी उन्होंने फिर? नहीं, from the get-go आप victims को दो अपनी फीस, that's a noble gesture. वो तो victims ही हैं, उनके साथ तो गलती हुआ है। लेकिन नहीं ना। This could have been avoided अगर आप सिर्फ ये कर लेते। लेकिन उससे पॉइंट तो नहीं होना था ना। वो जिंगोइज्म में आती ना ठीक वाली, जिंगो बेल्स जिंगो ऑल द वे। मगर यार let's count the things that happened in the final, right? Presentation fiasco, दोनों साइड एंड हीट, दोनों ही गलत। नहीं मेरे लिहाज से बायसनेस के बगैर अगर कोई एसीसी का प्रेसिडेंट श्रीलंकन, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी हो ना, उससे आपने ट्रॉफी लेनी है, अब लो। आपने बॉयकॉट कर देते मैच वरना, या अब ना खेलो ना फिर, rather than doing this performative bullshit। ट्रॉफी लेनी है फिर लो उससे। स्टांस अगर पक्का रखना है तो फिर खेलो मत, that's a way bigger stance, it sends a strong message। Honestly सबको पता है मेरी feelings about Knackers भाई, सबको पता है। ठीक है, I called him out twice when he tweeted, god damn it। उससे पहले भी ये एवी नहीं शैडो बैंड, वाकई में एवी नहीं शैडो बैंड पीसीबी। और हमने जितनी बातें की हैं पूरे पाकिस्तान के पॉडकास्ट है, वो कुछ उठा के देख लो। आई डोंट थिंक हमसे ज्यादा नैकर्स के बारे में किसी ने बातें की। जब किसी पाकिस्तानी ने गिरी हुई हरकत की, वी कॉल्ड देम आउट एज वेल। और मुझे जितना भी इश्यूज हों नैकर्स से, लेकिन भाई अगर वो एसीसी का प्रेसिडेंट है तो फिर है, आप उसके अंडर खेल रहे हो तो फिर लो। और नैकर्स मैंने सपोर्ट किया इस बात पे कि नहीं वो उससे हटा, लेकिन वो ट्रॉफी लेके जाने वाली बात बहुत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यार फियास्को एंड में इतना हो गया कि दोनों साइड्स ही गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, मुझे लगता है वो भी गलत है। हालांकि नहीं नैकर शुड सेड के यार ठीक है मैं भिजवा देता हूँ इंडिया, नहीं लेनी तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात पे, और मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी इस बात। बट ही रैन अवे विद द ट्रॉफी, दैट वाज बैड, प्रीटी बैड, दैट वाज बैड। या खैर, प्रेजेंटेशन फियास्को, द प्री गेम फोटो शूट जिसमें बेचारा सलमान अकेला खड़ा हुआ था ट्रॉफी के साथ। मैंने तो तब भी बोला था कि यार सलमान शुड हैव टेकन अ सेल्फी फ्रॉम बिलो विद हिमसेल्फ इन द ट्रॉफी ताकि ही कैन इनकॉर्पोरेट द स्काई। So we've got the presentation fiasco, we've got the pre-game photo shoot, we've got that weird toss thing where Waqar and Ravi were sharing toss duties. अच्छा उससे पहले तो नहीं हुआ था ये, पहले दो मैचेस में क्यों नहीं हुआ? A lot of really bad precedents were set in this Asia Cup, ठीक है? और फिर that Bumrah celebration as well. इतना कुछ तो फाइनल में ही हो गया। तो यार all of this could have been avoided, मगर पहले ही स्पोर्ट इस हद तक politicized हो चुकी थी, it had been heavily politicized that I'm not surprised. And then again, politicized नहीं, तुमने पहले यूज किया था weaponized, तो weaponized ही हुई है ना, क्योंकि आप वॉर जेस्चर्स और आर्मी पे आ गए हो। और ऑनेस्टली आपके
इंडिया में जो होंगे लोग, पाकिस्तान में जो होंगे लोग, वो बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, वाह Yeah. ये दिखा दिया हमने, ये कर दिया हमने। कुछ नहीं आपने किया, आपने गेम दुनिया में ना ऐसी बेइज्जती हुई है ना दोनों मुल्कों की कि ये क्या बच्चे, ये क्या, ये व्हाट इज दिस पेटीनेस। वाकई इट्स सो पेटी, ऑल ऑफ इट इज सो पेटी। तभी तो मैं कह रहा हूं, आर यू 12 year olds? आप लोगों ने आप बोलो ठीक है यार, दे स्टार्टेड इट फर्स्ट, आप क्लासी तरीके से आओ एंड यू गेट दैट मॉरल हाई ग्राउंड, देन वो भी आपने लूज कर दिया। जंग कर हाँ, ली ना भाई तुम क्रिकेट खेलने गए हो, जंग लड़ने गए हुए हो? नहीं, जंग कर ली ना आप लोगों ने, अब ना खेलो क्रिकेट। It was really disappointing अगर कि someone like Jasprit Bumrah also got consumed by that. क्या कर सकते यही हैं? होता और है। अगर राउफ ने फिर से कोई चीज की, उसको फिर से फाइन करो। लोग कह रहे हो राउफ ने फिर से कुछ किया था, करो उसे फिर से फाइन यार। जो करे उसको फाइन करो, बैन दे दो मेरी तरफ से। नहीं, कंसिस्टेंट रखो सजा। नहीं, आगे इस फिर से अगर किए तो दे दो बैन, हाँ। कर दो सबको बैन। आई डू नॉट गिव अ शिट। All I जहां will मर्जी say, से हो। yeah, Huh? one closing remark on this is that this Asia Cup will be remembered for all the politicization and the weaponization. It could have been avoided, but the politicians didn't help either. No one helped. No one helped. The players got consumed by it. यार, in the direct aftermath of the Kargil war, India and Pakistan played games of cricket and the cricketers were civil with each other. They were cordial with each other. यार फिर वही है ना, जब अब वो वाला टाइम आ गया जब the sport has changed. the sport has changed, the countries have changed, the ideologies have changed. Yes, ideologies have changed दोनों तरफ. Ideologies. मगर let's be real, थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को पोलिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी। BJP CCI as we always say, and to top it off, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, I'm so glad this tournament is over. And you know what? I request to the ICC कि इन दोनों टीमों को प्लीज फर्क ग्रुपों में डाल दो T20 वर्ल्ड कप में। I don't want to go through this again, मगर वो आएंगे ना पैसा बनाने फिर से। भाई आपने काफी तो बना ली है। 3 मैचेस का पैसा बना लिया, अब enjoy करो। This money should be enough to feed the cricket of lesser endowed cricket boards and also associate teams. Please spare us of all of this needless and sickening politicization and weaponization and drama. हमें नहीं चाहिए। आपने पूरी स्पोर्ट खराब कर दी है, पूरा एशिया कप का मजा खराब कर दिया। एशिया कप भी छोड़ो, ऑनेस्टली क्रिकेट का मजा किरकिरा कर दिया, किरकिरा कर दिया गंदा यार। कर दिया। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं ना इंडिया और पाकिस्तान से, they all hated this by the way. Everyone. And by the way, I'm so proud of not just the Janis of our podcast, Yeah. but also every single person who turned up on our lives from both India and Pakistan. जहाँ पे toxicity central हुआ था Asia Cup, you guys remained classy, remained cordial, and you built a community with us, which is based on love, peace, and mutual respect. I love you guys. And cricket. Yeah, love for cricket ही जोड़ है ना हमें। और आप लोगों ने अगर ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जानीस, तो उसके भी तरीके हैं। पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लो। इजी पैसा, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं 031936025545 इज द नंबर, या बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम करते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी 1500 पर मंथ पे। आप उस डिस्कॉर्ड में जो जानीस ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्कॉर्ड जो है वो सबके लिए फ्री है, वहाँ पे आके आप बातें कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी शर्त यही है कि आपको सिविल रहना होगा, वहाँ पे कोई गंदी बातें नहीं होंगी। और भी कुछ तरीके अगर हम वो भी बता दो। वैसे तो डिस्कॉर्ड सबके लिए, बट इफ यू जॉइन द जानीस चैट यू कैन टॉक टू साद, माइसेल्फ एंड महून exclusively exclusive. Also, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, we've got you sorted. Saad, Behram and Mahin, pata nahi maine apna naam kyun सा ले लिया। All three of us, we live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. तो आओ हमें come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए। For 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month. And if you gift us an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. बहुत inclusive community है। मुझे तो यार इन लोगों ने जंग में नहीं गंदी हरकतें की थी, तो ये यहाँ पे क्या करते? नहीं करते। इतने प्यार मोहब्बत से सारे रहते हो ना साथ। देखो बात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर एक के होते हैं, लेकिन वो इतने तमीज के दायरे में क्रिकेट पे रह के बात करते हैं। अगर आपको इस स्पोर्ट से प्यार है और आपको इस एशिया कप से मसले थे, तो आज ज्वाइन यार। कल मुझे वो फैन मेल आई, I'm not gonna name the guy, but वो इंडिया से था। आप जाकर मेरा ट्विटर देख लो, रीड द फैन मेल। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। Great one. मेरी साद की, अली भाई at Slog Sweepers, Jared and the entire Good Areas team, our currency are podcast views, or our currency is podcast views, right? But the true metric of success for me is these personalized messages, और जिस तरह हम community build कर रहे हैं एक तमीज़दार। I think that is our biggest victory, and this Asia Cup, I feel like मैं खुश इसलिए जाऊंगा इस एशिया कप से क्योंकि we manage this in the midst of a cesspool of negativity and toxicity and hyper nationalism. Jingo bells. अच्छा, जिंगोइज्म सेंट्रल। आगे आ जाएं यार, आगे आ जाते हैं यार। 2-3 बातें हैं और करने वाली। सबसे पहले तो इट वाज अ फुल हाउस इन दुबई, और ऑल दी शिट क्रिकेट मीम पेजेस जो बॉयकॉट लगे हुए थे विद इन द स्पेस ऑफ 2 weeks, 100+ स्क्रीन्स भी लग रही थी, एंड दे वर मेकिंग क्रैश सेक्स जोक्स एज वेल। एनीवे,
So, देखो, ultimately it was a full house. I bet the broadcast numbers were through the roof as well. So, कह लो जो कहना है यार, it might not be a rivalry, although कल तो competitive game थी. कल तो ठीक-ठाक competitive game. ठीक है, आप लोग नहीं मानते, आपने नहीं मानना तो आप ना मानो. ठीक है, आपकी बात भी ठीक है. मिसमैच थोड़ा हो गया. Yesterday was competitive. जो भी कह लो, India versus Pakistan remains the commercial mother of all games. Yes. ये आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते. पैहा. और ये पैहा चाहिए सबको. सबकी क्रिकेट पलती है. ये ब्रॉडकास्टर्स तो चलते ही पैसे में, दुनिया पैसे पे चलती है तो क्या है यार. तो ये अपनी परफॉर्मेटिव बुलशिट जरा साइड पे रखो. स्टॉप प्लेइंग टू द गैलरी एंड इफ यू वांट टू प्ले द स्पोर्ट प्रॉपर्ली देन प्ले इट प्रॉपर्ली विद रिस्पेक्ट. डोंट डिसरिस्पेक्ट द गेम, फॉरगेट एनी टीम. इसीलिए तो मैं सलमान अली आगा को अप्रिशिएट कर रहा हूँ. उसने यही बोला है. You disrespected us, but you also disrespected the game. चलो, खैर. I don't want to talk about this anymore. बहुत ज्यादा हमने बात कर ली है इसके ऊपर. मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ हैसन भाई की. यार हैसन कल तबाह हुआ था. I loved it when Hassan got animated by the way. That हारिस रऊफ पे तपा था कि यार where are you bowling यार, लेग्स पे बॉल कर रहा है. हाँ, पिला रहा था गेंदे उनको कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो. एंड यू नो व्हाट हारिस, आई लव यू मैन. मारो मुझे. लो भी तुमने आज इम्प्रोवाइजेशन कर दी है यार. हाँ देखो, आई जनरली ऑलवेज बैक हारिस रऊफ. बल्कि अभी इस हफ्ते क्रिकपिक्स आएगा जिसमें वी प्री रिकॉर्डेड दिस. ये बताया था Jared, Estelle and myself, a T20 team which could beat India. Draft था. I actually picked Haris Rauf and now I'm going to get sworn at. देखो यार, बिग मैचेस में मरवा जाता है, वैसे तो ठीक जाता है, बट हाँ इसके ऊपर ये जाएगा. धब्बा तो है. वो सारी की सारी बायलैटरल सीरीज हमें जितवा दे. मुझे क्या करना है उसका. सही बात है यार. जब क्रंच सिचुएशन आएगी तब जितवा दे, बाकी पहले कुछ भी ना किया. You've got to turn up when the stakes are high and the game is a big one. He continues to falter. Yes. But Hassan की बात कर रहे थे. Yeah. Love how he gets so animated. That tells you how invested he is in this job. Yeah. And how much this coaching role means to him. Pakistan cricket is lucky to have Mike Hassan. हाँ, माना कि उसने भी गलतियां की हैं, टैक्टिकल गलतियां हैं Hassan. बिल्कुल गलती मैं ये नहीं कह रहा, but he's the right man for the job. मैं एग्जैक्टली ये बोलने लगा था. आई थिंक मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हूँ इन बॉयज पे, वरना काफी ज्यादा मैंने और बोल जाना था. क्योंकि आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स थे. बिल्कुल ज्यादा पॉजिटिव्स लेके गए हो आप इस एशिया कप से. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान इस सिचुएशन में होगा. एंड सेकेंडली आई बिलीव दिस कोच इज द राइट गाय जो आपको और इम्प्रूव कर सकता है. आप लोगों को ना लगे वो एक अलग बात है. ये मेरा ओपिनियन है. आई फील पाकिस्तान वर लकी जब पहले उन्होंने गैरी कर्सन और जेसन गिलेस्पी के साथ जो किया, सुपर लकी. उसके बावजूद आपको माइक हैसन जैसा कोच मिला. Yeah. I mean, they lucked out big time. He is someone who understands modern day cricket. He is so invested in this role. Boys के साथ उसकी relationships बन गई हैं. और अब याद रखो, गेमें काफी हो गई होंगी हैसन एरा में, मगर वो आया तो जुलाई में था. टाइम नहीं हुआ ज्यादा. मैं मजे की मैं ये बात बताऊं, बिफोर हैसन जॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट ना सर था ना पैर था. नहीं, हम उसके YouTube चैनल पे वीडियोस देखते होते थे और हम दोनों इंप्रेस थे. यार यही चाहिए हमें. बिल्कुल यही चाहिए हमें. We want that school of thought. उसने बार-बार ये बात की कि यार सेल्फ प्रेजर्वेशन बबल में चले जाते हैं प्लेयर्स. बट देन अगेन मिस्टेक्स हैं. ऐसी बात नहीं है कि गलतियां. हाँ, ऐसी बात नहीं है कि इट्स बीन रियली गुड. बीच में काफी बड़े ये हुसैन तलत प्लेइंग इंस्टेड ऑफ हसन नवाज, उसका मेरे लिहाज से सबसे बड़ा ब्लंडर है. बैटिंग ऑर्डर वाला भी वो था वहां पे, डगआउट में था. उसकी वो ऑन फील्ड कैप्टनसी में जो गलतियां हो वो सलमान की. तो इस मैच में है ना, आई फील हसन नवाज को आपको टीम से ही नहीं निकालना. ऑल्सो यार पहले बहुत देर तक अबरार सुफियान को ट्राई नहीं किया, ज्यादा देर कर दी. कुछ गलतियां हैं, बट ओवरऑल ही इज द राइट मैन फॉर दिस जॉब. एंड इट वुड बी पाकिस्तान क्रिकेट's loss if Mike Hassan doesn't remain Pakistan's white ball head coach till the end of the 2027 ODI World Cup. और they will be poorer for it. और हैसन को ना एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है, उसकी सेम मिस्टेक्स जो है ना वो थोड़ी सी रिपीट नहीं हो रही. अब लर्न फ्रॉम दिस जो कल हुआ है, जिस तरह इंडिया जीता है, कहाँ आपने मिस्टेक्स की हैं, और अगर आप वो नेक्स्ट मैच में रिपीट नहीं करते ना, आई विल बी हैप्पी. That's it. Yeah, honestly, I think Pakistan has outperformed in a way कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. मैंने तो इंडिया श्रीलंका का प्रिडिक्ट किया था फाइनल बिफोर द टूर्नामेंट. आई थॉट पाकिस्तान सुपर फोर्स तक पहुंच जाएगी. मैंने प्योर वाइब्स पे प्रिडिक्ट किया था इंडिया पाकिस्तान. प्योर वाइब्स. हाँ, तुम्हारी तो पूरी सारी प्रेडिक्शन ठीक हो गई. सिर्फ हाईएस्ट रन स्कोरर गलत कर दिया, वो अभिषेक को ही करना चाहिए था. तुमने क्या हमने गिल किया था कि वो तेज खेलेगा, गिल इतना तेज नहीं खेलेगा तो उसके रन ज्यादा होंगे. अभिषेक डिस्प्रूव्ड अस. ही डिजर्व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यार.
अभिषेक शर्मा वाज द बैटर एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. बहुत ही मतलब the gulf is insane. Pathum Nissanka is the next best batter after Abhishek Sharma. Yes. और वाकई पैथुम है. Pathum. Yes sir. तो उसका बनता था. But yes, look, as Saad said, कि माना कि यार there are still plenty of holes. This is an imperfect team, lots of imperfections and flaws and holes, but the trajectory is still up. Batting is a major concern. Batting is a major concern. Huge. Special मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, टॉप ऑर्डर एंड मिडिल ऑर्डर, सारा लोअर ऑर्डर ठीक है. हाँ, बैटिंग इज अ मैसिव कंसर्न, बट bowling में for the most part Pakistan have been terrific, and really good. whilst they made mistakes in the field in the final, fielding trajectory is also on the up. So this team is getting better, albeit slowly. You've got to give them a little more time. Minor tweaks करो, obviously वो हमने डिस्कस भी किए. लेकिन मुझे पता है क्या डर है बेराम, माइनर ट्वीक्स नहीं होंगी और मेजर ट्वीक्स होंगी. सर्जरियां हो जाएंगी. ये तो फिर ना करवाओ ना. सर्जरी मैं फिर बोलूंगा, सर्जन आपको अच्छा चाहिए अगर सर्जरी करनी है. ऊपर से यार, लेट्स बी रियल, Pakistan defeated Afghanistan in the Tri-Series final. They lost one game over there. Yeah. In the Asia Cup, they only lost 3 India games, and with every single game versus India, they got better. पहले बिल्कुल no show था. 127 का टारगेट या whatever दे दिया इंडिया को, बुरी तरह हार गए. फिर आपने थोड़ी बेहतर बैटिंग की, आप 170 odd तक पहुंचे. 171, and you got blown away by Abhishek and Gill in the power play. 69 for none, game done. This final went to the last over. And you should have won this. You should have won this. This is the one that got away. You should have won this. आपकी अपनी गलतियों बिल्कुल अपनी गलतियां, and you will be ruining the fact कि आपने runs क्यों नहीं ज्यादा किए, आपने फील्ड में गलतियां क्यों की, tactical decisions क्यों आपने गलत ले लिए. थोड़ा सा आप संभल के ही खेल लेते यार. थोड़ा 10-15 रन की बात. इंडिया गलतियां कर गया था. हार्दिक पांड्या was replaced by a batter. दुबे वापस लाए. वो हर्षित और अर्शदीप में से कोई एक रह सकता था. उन्होंने ये फैसला नहीं लिया. They were like, no, we'll play the extra batter. We'll compromise on our fifth bowler. उन्होंने भी गलतियां की. और वो फिफ्थ बॉलर उनका ठीक रह गया. बैटिंग में गलती हमारा भी वैसे फिफ्थ बॉलर तो ठीक ही रह गया था. हमारा मेन बॉलर पिट गया ना. हारिस रऊफ पिट गया, 50 रन खा गया. सो पाकिस्तान फैंस, आई नो यू गटेड. You should be. You have every reason. हम दोनों भी गटेड थे यार. Honestly, I know कि हम प्रोफेशनल्स हैं और पाकिस्तान could lose every single game and I'd still be passionate about my job. मैं ये भी कहता हूँ कि जब जीतते हैं थोड़ी खुशी होती है, मगर थोड़ा सा फील होता है यार. फील होता है, इस तरह so close yet so far या so near yet so far जब हो जाता है तो फील होता है. बिल्कुल होता है. Yes, Pakistan only have themselves to blame, but Pakistan fans, माना आप गटेड हो. आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, यूर ह्यूमंस यार. आपका बनता है गटेड फील होना, बट जस्ट नो दैट दिस टीम इज स्लाइटली इंप्रूविंग. इनको थोड़ा सा और टाइम दो माइनर ट्वीक्स के साथ. ट्वीक्स होनी चाहिए, माइनर ही होनी चाहिए. एक दो हैं जो होनी चाहिए. और यार कम T20 वर्ल्ड कप, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू प्ले इन बिटवीन. इफ दे फिक्स देयर बैटिंग वोज वहां पे, आई नो कि यार इस तरह का फिक्स नहीं आ सकता कि वो बहुत ही बेहतर हो जाए, मगर इससे बेहतर हो जाए, थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए, देन दे कैन पोटेंशियली एंटर द T20 वर्ल्ड कप एज डार्क हॉर्सेस. इट्स स्टिल ऑन. सेना टीम्स को श्रीलंका में पकड़ सकते हो. बिल्कुल पकड़ सकते हो. खिलाओ फिर वहां पे दोनों अब्रार और सूफी मैच को, खा जाओ उनको. कर सकते हो. देखो इस तरह की बात नहीं है कि एटलीस्ट बॉलिंग में तो आपके पास हैं कुछ चीजें, आप ट्राई और कर सकते हो. आई फील अगली सीरीज में I'd give वैस जूनियर अ रन यार. अब्बास अफरीदी का तो फौरन लाओ ना यार. हसन अली, माना वो फील्डिंग अच्छी की थी, बट डूड यू खा रहे हो अब्बास अफरीदी की जगह. ये अगर फाइनल अब्बास अफरीदी खेल रहा था हारिस रऊफ की जगह, इन थ्योरी वैस जूनियर खेल रहा होता हारिस रऊफ, बैटिंग भी थोड़ी बेहतर दे सकते थे वो दोनों. अब्बास तो खास तौर पे, बट खैर ये हाइंडसाइट है. दिस इज हाइंडसाइट. देखो वो जो 13 गलतियां गिनाई थी वो हाइंडसाइट नहीं. Up until yesterday playing Haris Roof wasn't a bad blow, right? No, he deserved it. It did not pay off. I earmarked him as one of the guys who could take India down. वो उल्टा कर गया. वो हारिस रऊफ के साथ यही होता है ना. लेकिन मसला पता है क्या है? ठीक है यार, फिर अगेन मैं रेपिटेशन हो रही है, बार एक ही बात कर रहा हूँ यार. जब when it matters you have to step up, और नहीं हुआ 3 times. One time होता I would have let it go. It's 3 times now in crunch situation. Melbourne, Dallas, Dubai, बात तो अभी रहेगी दिमाग में. But then again, Pakistan, as we said in the preview, if they manage to play the final of the Asia Cup, this is going to be a successful campaign. It is a successful campaign. मैं अभी मैं ये कह रहा हूँ कि I am happy or content with Pakistan's campaign. गलतियां बहुत हैं, massive imperfections and holes यार. But despite that फाइनल खेले, फाइनल में इतना compete किया, I'm willing to give them some flowers. They can build on this. They can become a better team slowly. यार, they are not at the level of India, Australia, South Africa, England, New Zealand, but given some time and some improvements, they could get close. They could potentially get there someday.
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कोई भी ये फाइनल खेल लेता उसके लिए सक्सेस होनी थी, पाकिस्तान के लिए सक्सेस है। इंडिया अगर ये फाइनल हारता तो उसके लिए फेलियर होना था, ये उनके लिए भी सक्सेस है कि दे वॉन द फाइनल डिस्पाइट नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, एंड मे बी इट्स नॉट बाय अ लॉट, बट पाकिस्तान हैव प्रूवन दैट दे आर बेटर देन द वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। हाँ, वो तो प्रूव कर, मे बी बाय नॉट अ लॉट, बट इतना तो कर गए हैं प्रूव। ठीक है, अभी भी वो जो गल्फ बड़ी टीमों के साथ है वो ज्यादा है, बट वो ब्रिज कर सकते हो आप गैप, अगर आप बस कुछ चीजें अपनी ठीक करो, बैटिंग सीख लो यार। बैटिंग में यार आप लोग कभी शुरू में मोमेंटम गवा देते हो, कभी एंड में आप बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हो। 4-5 मिडिल ओवर्स में कभी कभार क्रम्बल। 4-5 बंदे हैं जिनकी जगह जो है ना इन द साइड थोड़ी सी डाउटफुल है। फखर इज ओल्ड नाउ। साइम, हाँ, आई वुड स्टिल प्ले हिम दो, बॉलिंग तो दे रहा सलमान अली आगा, है। कजन सैल probably has to go, right? हुसैन तलत, Talat shouldn't have been there in the first place. हारिस रऊफ। हाँ, if you've got replacement bowlers, why not? गिव वैस जूनियर, अब्बास अफरीदी a go. Yeah, give them a go. 5-6 खिलाओ दोनों हो गए। को। बाकी साहिबजादा फरहान हैज बीन गुड, Yeah, उसने मतलब फाइनल में कर दिया। पहले बहुत पुअर था हाँ, एशिया कप में, बट लेकिन- pick things up. हाँ, he फाइनल did. अच्छा खेल गया ना। उससे पहले भी अच्छा खेला था वो, जो उसके कितने 24 और हाँ, 15 मारे थे जिसने I श्रीलंका take- हाँ, I को। take Those that. two knocks have bought him time. हाँ, so साहिबजादा फरहान इज गुड। I'm still willing to stick with Saim, by the way. I know runs नहीं आ रहे, नहीं, मगर मैंने डाउट्स की बात की। अच्छा। डाउट्स तो हैं ना। doubts. So he needs to start scoring runs. That's his major USP, right? तो अगर वो बैटिंग में नहीं कर रहा तो फिर लिटरली वो बैटर की जगह खा रहा है। प्राइमरी स्किल है ना उसकी। माना कि बहुत he's been such a high performing part timer कि I'm willing to bump him up to all rounder. एक और मोहम्मद हारिस को भी डालो इसके अंदर। मोहम्मद Doubt सारिस को है, डालो, डाउट है। बट अगेन रिप्लेसमेंट्स नहीं है। वो एक अलग पॉडकास्ट है, मैं इस वक्त सिर्फ डाउट्स बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, शाहीन अफरीदी परफेक्ट, सॉलिड। राणा जी एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। नवाज को भी डाल दो यार, ठीक है, जो भी इन है। हाँ, नवाज फिलहाल इन है। Yeah. और हसन नवाज को रखो, हसन खिलाओ, नवाज को रखो। प्लीज खिलाओ, उसके इर्द गिर्द टीम को बिल्ड करो। अबरार एंड सुफियान मुकीम बोथ स्टे। स्टे। और अब बाकी कौन थे? You'd probably keep Haris Rauf in the squad, but does he start? I don't know. Why would you? वैस जूनियर और अब्बास अफरीदी रखो। मैं तो करूँ। Yeah. मैं तो करूँ। मैं एटलीस्ट ये नेक्स्ट फ्यू सीरीज में ट्राई तो करो। मैं ऑनेस्टली इस वक्त मैं बोल रहा हूँ हारिस रऊफ को अगली सीरीज तो ना दूं मैं, शायद उससे अगली भी। फखर यार इज अ डेंजरस वन, ही इज ओल्ड, ही इज ऑलवेज इंजर्ड। He didn't deliver with impetus. Impact चाहिए था, वही नहीं दे पाया। खड़े तो हो गए आप, मगर आपने फिर लंबा करना था ना स्कोर, कैच अप नॉक खेलते फिर। But then again, overall satisfied with the campaign, satisfied with the progress. अब मैं बार बार ये कहता हूँ कि ट्रेजेक्टरी आप है मगर ग्रेडियंट स्टीप नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग इंप्रूव करो, फील्डिंग और बॉलिंग में काफी इंप्रूवमेंट है। और अगर ये वैसे एशिया कप जीत जाते हैं ना बहराम, तो ये मास्क होती चीजें, ये चीजें मास्क होती तो एक तरह से शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और माइक हैसन, देन अगेन यू वांट अ ट्रॉफी ब्रो, you want a trophy, you desperately need a trophy, और फिर फाइनल हारना तुझे पता है, फिर that's a different ball game. It weighs down on you mentally, especially when you know you could have won it. You could have won. And you could have silenced a lot of people, man. बथेरी बातें सुनने को मिली हैं। आदि हारिस रऊफ के दिमाग में तो आई एम प्रीटी श्योर आधी बातें यही घूम रही होंगी। Haris Rauf- साइलेंस द क्रिटिक्स में। Haris Rauf should schedule some sessions with that shrink जो भेजा था, because he needs it. एंड पाकिस्तानी फैंस को भी उसका नंबर दे दो श्रिंक का, मुझे लगता है उन्हें जरूरत है। हाँ, पाकिस्तानी वो सरखेल का ट्वीट था ना, the psychologist probably needs a psychologist at this point. Yeah. So anyway, और तो और I क्या ही don't- बात है I यार। don't- देखो, एंड में इट्स अ स्पोर्ट, हार जीत होती है। यस, पाकिस्तान शुड हैव वन दिस एशिया कप फाइनल, और सबको थोड़ी सी ये बात स्टिंग तो करेगी, बिल्कुल करनी चाहिए। यू एज अ प्रोफेशनल टीम यू टेक द पॉजिटिव्स एंड यू मूव ऑन, और कोई तरीका नहीं है। फैंस को तो करेगी, फैंस की मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं टीम की बात कर रहा हूँ। दिस शुड स्टिंग यू, Yes. बिकॉज जो चीजें आपको दर्द देती हैं ना, फिर वहीं से आप इंप्रूव करते हो। हाँ. अगर यहाँ से आप इंप्रूव ना करो तो फिर और मसले होंगे। बैटल हार्डन हो फिर, या दैट्स द अपसाइड Yes, टू दिस। yes. क्योंकि जो ये दुख देख लिए, एक दिन आपको पंप हो गया आप, और आप अच्छा खेल जाओगे। देखो, बुमराह अच्छा खेल लिया था आपने, हाँ। फॉर द मोस्ट पार्ट आपने कुलदीप, वरुण और अक्षर को भी अच्छा खेल लिया था, बाद में आकर वो खा गए आपको। कुलदीप को पहले 2 ओवर 23 रन मारे थे। द ग्रेट इंडिया चोक होल्ड स्पिनर्स वाला बाद में आ गया। तीनों लड़ गए फिर। इवन वरुण एंडेड अप 2 for 30, आई थिंक ही फिनिश्ड विद गुड फिगर्स। That's about That's it, right? about it, man. But thank you so much हाँ. for sticking with us throughout our coverage of the Asia हमें Cup. एशिया कप कवर करने में बहुत बहुत मजा आया है, लेकिन मुझे ये पॉलिटिकल बुलशिट I don't बहुत want any of तब this चढ़ाई है, इसलिए हम खुश मजा हैं। भी आया है, ये भी हुआ है। आई एम हैप्पी कि ये गुजर गया है। खत्म हुई ये सारी पॉलिटिकल ब्रूहाहा एंड ऑल दिस बुलशिट। अब विमेंस वर्ल्ड कप पे थोड़ा बहुत हम ऑब्वियसली करेंगे, फुल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज इज बिग, उस पे हमने करना ही करना है। आई एम एक्साइटेड फॉर दैट वन। और फिर आगे जिस तरह क्रिकेट बढ़ती रही, हम ये आते रहेंगे आप लोगों की स्क्रीनों पे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कर दे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम, मुझे, माहिन, नोमी, काशिफ, हर एक को हर जगह फॉलो कर दे। ऑल्सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर इंटरेक्शंस एंड सुपर चैट्स ऑन आवर लाइव्स। Yes, sir. दैट रियली मेड अ डिफरेंस गाइस।
और भी लाइव सेशंस और भी आएंगे। आएंगे लाइव, हम लोग एम्प अप कर रहे हैं लाइव Yeah. शोज को, और वो वाला चैनल जाकर सब्सक्राइब करो, प्रो स्पोर्ट्स लाइव, माइग्रेशन होने वाली है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्टबॉक्स, पॉडकास्ट एडिक्ट, और जहां हैं हम वहां पे जाके हमें कैसे सुन कैसे ले। याद रखता है बस हो गया है। तुम क्या पूछ रहे हो ये माइक रॉस? हाँ वैसे माइक रॉस Yeah. क्यों ये पूछ रहे हैं? एनीवे, थैंक यू सो मच, Bye-bye. सी यू सून, बॉय गैजा, अल्लाह हाफिज।